रिस्पेक्टेड लायन हेमंत राज सर कि आपने ऑलरेडी हमें टिप्स देने की शुरुआत कर दी और हम फ्लैक्स सीड्स की जो बात कर रहे हैं, आलसी की सीड्स जो हम सब ज़रूर लेना शुरू करेंगे, ये हर घर की ज़रूरत है। तो अब से Yes. आइए हम और भी जानेंगे हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स से। बहुत Yeah. शुक्रिया। Thank you. Simran, one good news, we have started live on FB. Thank you so much. Global Namaste and a wholehearted welcome to each and every one of you across the world. We are truly honored and blessed to be connected with all of you on behalf of Lions Club of Bharat Icon to celebrate the breast cancer awareness. And this October month is always about spreading awareness regards breast cancer. Please join us today and meet with us, our esteemed dignitaries from across the world, and of course, our doctors who shall share with us the great expertise. We are truly humbled and honored to have with us respected District Governor Lion Shashikant Motsa. Truly an honor for all of us to have your presence here. Lion Dr. Khwaja Mudassir, sir, our Vice District Governor. Thank you very much, dear sir, for honoring us with your humble presence. Our Vice District Governor, Lion Hemant Raj Sethia, sir. Thank you very much, sir, for being with us and sharing with us your valuable time. Well, my dear friends from across the world, today all our doctors shall share their expertise. They're giving us their valuable time simply to make our lives better. It is a beautiful festival. Today is the second day of the celebration of Navratri. And I really would like to wish each and every one of you a happy Navratri. It's the festival of the goddesses. And by the grace of the goddesses, of course, we all have to be healthy. And of course, we all owe it to our esteemed dignitaries, to the entire Lions Club who's here with us, of course, Lions Club of Bharat Icon, and our esteemed doctors. So, humble thanks to Dr. Ritesh Agarwal, Dr. Sanjay Sharma, Padma Shri Dr. Ashok Gupta, Dr. Raj Nagarkar, Suman Agarwal ji, Shagun Gupta ji, Dr. Rakhi Agarwal, and of course, our president of Lions Club of Bharat Icon, Mr. Akhil Bansal. And we're going to request Dr. Ritesh Agarwal, qualified MS, MCH, FAIS, and he's a consultant for thyroid, endocrine, breast, and cancer surgeon as well. And we're going to request Dr. Ritesh Agarwal to please highlight us regards how to take care and to prevent breast cancer. A wholehearty welcome to you, Dr. Ritesh Agarwal. Thank you so much for being here with us. Thank you so much, Simranji. It is my pleasure, and I would like to thank first of all Lions Club of Bharat Icon to invite me here and give me an opportunity to share my views regarding some common breast problems and breast cancer. I will be speaking in both Hindi and English so that audience can be very well clarified what are their doubts, and later on at the end of the talk we can have one or two quick questions. So I am starting my PowerPoint presentation. Can you share the screen, please? Very much. Sure, sir. So are you able to see the screen? Yes, yes, sir. Very much, sir. Okay. Thank you. So regarding the breast problems and breast cancer, there's a very one common disease and a very dreadful disease also, which is known as cancer. This word, एक जो ये word है cancer, ये अकेला ही ये word पूरे पेशेंट और उसकी फैमिली के मन में बहुत डर पैदा कर देता है. इतना डरावना ये वर्ड है. ये कैंसर होता क्या है, उसका कैंसर क्यों बोलते हैं? कैंसर को लैटिन में कहते हैं क्रैब. आप लोग मुंबई में कई सारे लोग रहते हैं. मुंबई में आप कभी बीच पे गए होंगे या बाहर भी प्लेस पे गए होंगे. आपने केकड़े देखे ना, क्रैब्स देखे हैं? देखा होगा कि उसकी बॉडी एक बीच में मोटी सी बॉडी होती है और बिल्कुल पतले पतले उसके लिम्स या उसकी टांगे या उसके लिम्स होते हैं जो बाहर तक फैले होते हैं. तो कैंसर में भी ऐसा होता है कि बीच में एक छोटी जगह से जो है कैंसर स्टार्ट होता है. बॉडी के किसी भी ऑर्गन से स्टार्ट हो सकता है और धीरे धीरे करके वो पूरी बॉडी को अपने कब्जे में लेता रहता है, जिससे पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन जाता रहता है, बॉडी कमजोर होती जाती है और अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना करें तो फिर अल्टीमेटली एक ही चीज बचती है, दैट इज डेथ. So cancer is a type of tumor. It is an abnormal, uncontrolled growth. ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है. ये abnormal growth है, uncontrolled है. It starts from a body part, rapidly progresses to other body parts and take away the body nutrition.
If not treated, then death can ensue. October is the Breast Cancer Awareness Month, and this pink ribbon is a logo for breast cancer awareness. अलग अलग कैंसर्स को अलग अलग कलर के रिबन्स का साइन दिया गया है. For breast cancer, it is a pink ribbon. Okay, let us see how common it is. The global cancer burden has increased, and in 2018, it is a WHO data. In 2018, roughly 10 million, that means 1 crore. 1 करोड़ डेथ्स हुई थी कैंसर से in 2018, 2 साल पहले. It is continuously increasing only. In India, the numbers are increasing, and we are estimated that roughly 3.33% of females will have a breast cancer in their age, in their whole lifetime. हम खाली मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में आप ये देख रहे हैं, ये जो चेंज आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का, तो ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ और मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो इस समय आधे से ज्यादा पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के मुंबई में सिर्फ 40 से 49 इयर्स के एज ग्रुप में है. तो दिस इज नाउ बिकमिंग अ वेरी वेरी वल्नरेबल एज ग्रुप, 40 to 49 years. Why we all conduct all these seminars, webinars, and why we spread awareness? Because if you people are aware, then it leads to lesser deaths. We can detect the cancer at an early stage because the patient can participate in the screening programs. अगर early stage में कैंसर की डिटेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहता है. ऑल्सो आज की डेट में साइंटिस्ट के पास या डॉक्टर्स के पास कैंसर के बारे में नॉलेज भी बेटर है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बेटर अवेलेबल हैं. सो दैट इज व्हाई कैंसर का ट्रीटमेंट आजकल पहले से काफी बेटर भी हुआ है. हम ब्रेस्ट के कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं, तो मेरे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ इस चीज के आते हैं. दिस इज द ब्रेस्ट पेन. क्या हो रहा है? छाती में दर्द हो रहा है. कब होता है? कभी पीरियड्स के आगे पीछे होता है, यूजुअली वो पीरियड्स के पहले होता है. पेन होने से घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर को दिखाइए. डॉक्टर आपके सब टेस्टिंग करा के उसके लिए मेडिसिन देंगे. कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं एंड काफी हद तक के पेन रिलीव हो जाता है. यूजुअली ये पेन 15 साल से 45 साल की एज तक के होता है, यानी कि जब लड़की के पीरियड शुरू होते हैं और जब तक उसके पीरियड चलते रहते हैं, तो यूजुअली ये पेन तब तक रहते हैं, अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं. अगर मैं 100 लेडीज को जो है अलग अलग एज ग्रुप खड़ा कर दूं, तो रफली 30-40 लेडीज को कभी ना कभी अपनी लाइफ में पेन की प्रॉब्लम रही है ब्रेस्ट में. इससे घबराना नहीं चाहिए, और पेन होने से कैंसर के चांसेस यूजुअली कम होते हैं, नहीं होते हैं. अभी मिस्टर शशिकांत मोदी ने या सॉरी मुदस्सर सर ने बात की थी अलसी की. सो अलसी जो होती है वो रियली इस ब्रेस्ट पेन में बेनिफिशियल रहती है. एक और कॉमन सिम्टम है लेडीज में, वो होता है निपल में डिस्चार्ज आना. निपल से कुछ निकल रहा है. अब क्या निकल सकता है? पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, खून भी हो सकता है. तो हमें कौन सा ऐसा डिस्चार्ज है जिसको देख के एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. जब वो डिस्चार्ज रेड हो, एक ही पॉइंट से आए, आप पेशेंट से पूछिए कि उसके कितने पॉइंट से ड्रॉप्स आ रही हैं. पेशेंट यूजुअली बता देते हैं कि 2 पॉइंट से आ रहे हैं, कि 3 पॉइंट से आ रहा है, या 1 पॉइंट से आ रहा है. तो एक ही पॉइंट से अगर आ रहा हो, एक ही साइड से आ रहा हो, रेड हो यानी कि लाल कलर का हो, और किसी भी समय अपने आप से आ रहा है बिना दबाए हुए, तो यूजुअली दिस काइंड ऑफ डिस्चार्ज इज अ डेंजरस वन. इसको फिर प्रॉपर्ली टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कहीं हिडन कैंसर अगर हुआ तो हम टाइमली उसको ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर के और क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैंसर प्रेजेंट कर सकते हैं? ब्रेस्ट में कोई भी गांठ, कोई भी कड़ापन अगर हो तो उसको हल्के में मत लें, उसको अपने डॉक्टर से जरूर से मिलकर क्लैरिफाई कराएं, इसमें कोई डेंजरस चीज तो नहीं है. यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठें होती हैं, एक गांठ की तरीके से फील होता है, और पकड़ में तब आता है जब यूजुअली लेडी नहा रही होती है, ब्रेस्ट में हाथ जाता है, लगता है कि अंदर कुछ कड़ा कड़ा है जो काफी हार्ड सा हो गया है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं. आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए. मोस्ट कॉमनली जो कैंसर होता है वो प्रेजेंट करता है इसी गांठ के तरीके से. अलग अलग ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स में अलग अलग जगह प्रेजेंट कर सकता है, और यूजुअली इस गांठ में दर्द नहीं होता है. मैंने पहले भी बताया था कि जब दर्द हो तो यूजुअली वो कैंसर नहीं होता है, और जब दर्द नहीं हो तो उस केस में हमेशा डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए. लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, थोड़ा गलती करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब खाली गांठ की परेशानी कोई हो नहीं रही थी तो हमने दिखाया नहीं. बट ऐसा नहीं है.
अगर गांठ हो और दर्द ना हो तो तुरंत दिखाएं, उस केस में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर दोनों छातियों के शेप में या साइज में सडनली कुछ चेंज आ जाए, निप्पल से डिस्चार्ज आने लगे जैसे मैंने पहले बताया, अगर निप्पल और एरियोला के कलर में आपस में कुछ चेंज हो जाए रिसेंटली, या निप्पल अंदर को चला जाए या खत्म हो जाए रिसेंटली, तो उस केस में डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करिए प्लीज। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेडिकल फोटोग्राफ्स हैं, बट मैं आप लोगों की परमिशन चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक आई प्रिज्यूम ऑल आर एडल्ट, so there should not be any problem with the showing the photographs. Is it okay? Actually, I'm not sure because we are live on Facebook, um, so I'm not sure about this, doctor. Okay, so I will show only one photograph. I will not show the patient's face. Yeah, please, because Patient's we are live identity on will not be Facebook. disclosed. So, Thank yes, you. thank you, sir. पेशेंट का ये रिकरेंस था कि इसमें ऑपरेशन के बाद भी क्योंकि बढ़ा हुआ कैंसर था तो रिकरेंस हुआ और पूरी छाती को फिर से इन्वॉल्व कर लिया। ये सेकंड फोटोग्राफ देखिए कि होल ब्रेस्ट, जो पूरा का पूरा ब्रेस्ट है, वो इन्वॉल्व हो गया है गांठ से अंदर ही अंदर। तो पेशेंट कितना लेट प्रेजेंट करते हैं। ब्रेस्ट में अगर कोई घाव हो जाए, कभी उसमें कोई अल्सर बन जाए, तो उसको हल्के में नहीं लेंगे, हमेशा उसको तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे। तो घाव होना ब्रेस्ट में कोई कॉमन सिम्टम नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांस केस था। इस केस में क्या हुआ कि लेडी ने नेग्लेक्ट किया और एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड में भी फैला, हाथ में भी फैला, एंड इसमें हमारे हाथ में ऑप्शंस ट्रीटमेंट के बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी स्टेज ना आने दें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें अगर जरा से भी सस्पिशन लगता है किसी भी चीज का ब्रेस्ट के अंदर। किसी भी सिम्टम को ब्रेस्ट में नेग्लेक्ट ना करें। आगे हम ब्रेस्ट में अब आते हैं कि क्या क्या टेस्ट करते हैं यूजुअली। इनकी डिटेल्स में जानबूझ कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे एक नटशेल में थोड़ा सा फ्लो चार्ट देना है। सो मैमोग्राफी का नाम आप सब लेडीज ने सुना होगा। मैमोग्राफी होती क्या है? जैसे एक्सरे की मशीन होती है, उसकी दो प्लेट्स होती हैं, उसके बीच में ब्रेस्ट को रखते हैं और एक्सरे डालते हैं, तो दैट इज अ डिजिटल मैमोग्राफी। वहीं जब हम सोनोग्राफी की मशीन का जो हैंड पीस होता है उसको ब्रेस्ट के ऊपर रख के उससे पिक्चर्स लेते हैं, तो दैट इज अ सोनोमैमोग्राफी। इसी तरह मैमोग्राफी एमआरआई से भी की जा सकती है और स्पेशल टेक्निक जिसको सेंटी मैमोग्राफी हम लोग स्पेशल केसेस में यूज करते हैं। सेकंड डायग्नोस्टिक मोडेलिटी होती है पैथोलॉजी। हमें ये देखना है कि ब्रेस्ट में एक्चुअल में कैंसर है या नहीं है। तो उस केस में नीडल की टेस्टिंग करते हैं जिसको बोलते हैं एफएनएसी या बायोप्सी। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल, बायोप्सी थोड़ा मोटी नीडल से थोड़ा सा ज्यादा टिश्यू लेते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। कहते हैं कि एक थोड़ा सा रूल हम लोगों ने बनाया है कि 40 इयर्स के ऊपर की फीमेल को साल में या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी रहती है, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल टू गेट अ मैमोग्राम एटलीस्ट once a year और twice a year। एफएनएसी और बायोप्सी क्या होती है? ब्रेस्ट में जहाँ पे गांठ है उसमें सुई डालते हैं और सुई डाल के 1 या 2 ड्रॉप लेते हैं या थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं। जब ड्रॉप्स लेते हैं उसकी स्लाइड बनाते हैं, पैथोलॉजी भेज देते हैं ताकि वो टेस्टिंग कर सकें कि ये क्या है। अगर वो बोलते हैं कि इसमें कैंसर किस तरह से, तो कैंसर के तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। बायोप्सी को बताते हैं कि कैंसर है या नहीं है और कौन से टाइप का कैंसर है, अकॉर्डिंगली वी ट्रीट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर एवरीवन, द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर लेडी को ये करना चाहिए और हर लड़की को भी ये करना चाहिए, स्पेशली जब वो 15 साल के ऊपर की हो गई है। उनको शर्माना नहीं चाहिए। अपने हाथ से और पूरा हाथ फैला करके ब्रेस्ट के ऊपर रोल करना चाहिए, पूरे अच्छे से चारों ओर देखना चाहिए, आर्मपिट में भी देखना चाहिए। कब करना चाहिए? महीने में एक बार, जब पीरियड्स खत्म हो जाए उसके 3 या 4 दिन के बाद। अगर कुछ भी नई चीज डेवलप हो रही तो कोई लेडी अगर रेगुलरली अपने ब्रेस्ट की टेस्टिंग कर रही है तो उसको तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो इस वजह से ट्रीटमेंट इजियर हो जाएगा। कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। जैसे हम जानते हैं कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो स्टेज 1 में सर्वाइवल 85% है 5 साल के बाद, और वहीं अगर स्टेज 4 हो जाती है तो सर्वाइवल खाली 5% होता है। तो हम क्यों ऐसा काम करें कि स्टेज 4 तक प्रोग्रेस कर जाए, पहली स्टेज में ही अगर पकड़ लें कैंसर को तो अच्छा रहेगा, उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगा। ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट्स क्या क्या करते हैं? ऑपरेशन जो एक मेन मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, रेडिएशन यानी कि सिकाई, कीमोथेरेपी यानी कि हार्ट दवाइयाँ, ये सब आपको डॉक्टर आज आगे बताएंगे, हार्मोनल थेरेपी एंड इम्यून थेरेपी। ऑपरेशन में जैसे पहले होता था कि किसी को कैंसर हो गया तो पूरा पूरा ब्रेस्ट निकाल देते थे,
जैसे इस स्लाइड में देखिए कि ये ब्रेस्ट पूरा एक साइड का निकाल दिया गया, मगर आज की डेट में ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स डेवलप हो गई जिससे हम ब्रेस्ट का कंजर्वेशन यानी कि उसको बचा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ब्रेस्ट को बचा लिया गया है, सिर्फ गांठ निकाली गई है और थोड़ा सा पार्ट निकाला गया है। ज्यादा ब्रेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंजर्वेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में डॉक्टर अशोक सर आपको अच्छे से बताएंगे। इज अ वेरी एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन एंड इज अ वेरी गुड सर्जन ऑल्सो। इस केस में देखिए कि पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट निकाला गया था, बट फिर उसको बाद में सिलिकॉन इम्प्लांट और एक्सपेंडर्स की सहायता से एक हमने नया ब्रेस्ट बना दिया, सो दैट लेडी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल नाउअडेज। कोई घबराने की बात नहीं है। लेडीज ये डरती हैं कि अरे हमको कैंसर हो गया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ब्रेस्ट निकाल देंगे। सबसे बड़ी घबराहट उनको यही होती है। इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ गांठ निकाल के भी काम चल जाता है। दिखाई जैसे मैंने बताया बहुत ही हाई पावर की एक्सरेस होती हैं और कैंसर की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे देना है। कीमोथेरेपी बहुत ही गर्म दवाइयां होती है कैंसर की, जी जिनको सर। हाँ नहीं जी जी ओके सर, if you- थोड़ा सा टाइम हो रहा है बस तो ओनली फ्यू फास्ट स्लाइड्स, या आई एम गेटिंग फास्ट। सो कीमोथेरेपी बहुत ही गर्म दवाइयां होती हैं जिनको हम इंजेक्शन से यूजुअली देते हैं, कुछ दवाएं खाने की भी होती हैं। कीमोथेरेपी देने के लिए आजकल एक स्पेशल डिवाइस इंसर्ट की जाती है जिसको बोलते हैं पोर्ट। जिससे ब्रेस्ट कैंसर में नहीं बाकी कैंसर में भी यूज हो सकती है। हार्मोन थेरेपी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का हार्मोन से भी लिंक होता है, तो कुछ स्पेशल मेडिसिन होती है जो हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और उससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी कुछ बहुत ही महंगी मेडिसिन होती हैं। एक वायल आपकी 40,000, 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख की आ सकती है, बट ये है कि ऑप्शंस अवेलेबल है, तो दोज हु कैन अफोर्ड वी कैन गिव देम। So this is my final slide. Take home message. Do not feel shy. That is very important. Ladies feel shy and they hesitate also. So do not feel shy. Do not hesitate. Discuss with your close people so that they can guide you. And then you can also discuss directly with an expert doctor. Report any changes in your breast immediately. Get the best available treatment that is your right. And then enjoy the long-term cure. So thank you so much for the present and nice hearing. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. A humble thanks to Dr. Ritesh Agarwal. Ladies and gentlemen and my dear friends, I take this opportunity of truly thanking all of you. And, we have our esteemed doctors, of course, with great expertise, but I'm going to request you all because we are actually live on Facebook. So we might have all age groups. So, you may, of course, we all know what is best to be, presented here. And, with the presentations, we could also, go ahead with just speaking and, helping the masses. I'm going to request now one of the top oncologists with 4 decades of experience, Dr. Sanjay Sharma, to kindly highlight us more. बहुत अच्छी तरह से हमें डॉक्टर रितेश अग्रवाल ने बताया भी कि किस तरह से सिमरन जी, just take interruption. I would like to take your permission, so I have to leave also. Sure, Thank you so much for inviting me. Thank you. रितेश सर, थैंक यू कि आपने हमें इतनी खूबसूरती से बताया. How can we actually know that, these are the signs of cancer, the first signs. बहुत बहुत शुक्रिया, dear sir. May we kindly request our Dr. Sanjay Sharma, please, to kindly address everyone and to tell us how could we really prevent ourselves, from really getting breast cancer, please. Thank you, sir. Good evening, everybody. Simran ji, thank you very much. I thank Bansal साहब और तमाम लॉयंस क्लब के पदाधिकारी जिनने इस कैंसर अवेयरनेस मंथ में ये जो आयोजन किया है, इसका कोई पैरेलल नहीं हो सकता है. उसका एक ही कारण है, हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक बीमारी जो होती है वो लेट स्टेज पे आती है, और ये अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो एक महिला को, कुछ लोगों को, समाज को ये समझ में आता है कि इससे एडवांटेज क्या है. मेरे 2-3 जो बाकी सब चीज़ें रितेश ने बता दिया, मैं कुछ जल्दी में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ. कैन आई हैव माय स्क्रीन प्लीज? Yes, please. Yeah. Thank Okay. you. I'll finish quickly. I won't take much time. No, sir. Please take your time, sir. Okay, I'm sorry. I Apologize. From Asian Cancer Institute, Kambala Hira Hospital and Lilavati Hospital. देखिए, ऐसा है कि one sec.
ये तो बताया जितेश ने कि कैंसर क्यों होता है। जो हमारी बॉडी में एक इकाई होती है जिसको बोलते हैं सेल, और वो सेल ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए हमारे सब ऑर्गन बनते हैं। जिस कोई भी कारण से अगर सेल अपने आप बढ़ने लगे और उसको रोकथाम हमारी इंटरनल मैकेनिज्म नहीं कर सके, या जो मरने जो सेल की जो डेथ होती है वो अगर डेथ ना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बड़ा फोड़ा हो जाएगा, बड़ा ट्यूमर हो जाएगा। ये एक सेल की बॉडी की एक प्रक्रिया होती है और बहुत सारे कारण है जिसके कारण से ये हो जाता है और इसको कैंसर बोलते हैं। तो मैं ज्यादा बात ना करके बताऊंगा कि हिंदुस्तान में आज 2017 का डाटा है कि 101.7 मिलियन न्यू कैंसर केसेस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 1000 में 14 लेडीज गांव में होती है, लेकिन शहरों में हमारे यहाँ बहुत तादाद में बढ़ रहा है। इसका इंसिडेंस 28 से 35 है। हर शहरों में रहने वाली लो सोशो इकोनॉमिक लेडीज का भी जो नंबर है वो ज्यादा है। उसका मतलब कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के कारण से हमारे यहाँ ये हो रहा है। अब प्रेजेंटेशन तो बहुत डिटेल्स ने बता दिया, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। एक चीज जो वो भूल गए, जो शायद ना बताना चाहते थे, कि हमारे यहाँ कभी कभी अपार्ट फ्रॉम लम और एल्डरली लेडीज में ये पेन होना बहुत तादाद में पाया जाता है, ब्लड इन, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में भी कभी कभी एक तरफ का ब्रेस्ट बहुत बढ़ जाता है और उसमें ऑरेंज पील अपीयरेंस या संतरे के दान में जैसे छिलका होता है वैसा हो जाता है। और कभी कभी एक्यूट पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट में कभी कभी बहुत भूख ना लगना, लिवर बड़ा हो जाना या हड्डी में आ जाना। तो प्राइमरी कारण अगर लेडीज में ब्रेस्ट को पहला देखना चाहिए, ये बहुत एक कारण है। और आजकल हमारे यहाँ कोई ऐसी दवाइयां आ गई कि टैबलेट से अगर हार्मोन पॉजिटिव केसेस है तो उनकी लाइफ इवन 4th स्टेज में भी काफी हद तक बचाई जा सकती है। तो काज क्या है? लाइफस्टाइल है, हमारे खान पान से होता है, अल्कोहल के संबंध से होता है। जो हुक्का एक पार्लर आजकल शहरों में लगा है, या लेडीज जो सिगरेट पीती हैं, इनसे कारण से बढ़ता है। जीन कुछ म्यूटेशंस आजकल आ गए हैं। हालांकि फैमिलियल कैंसर ज्यादा नहीं होता है, हमारे पॉपुलेशन में 3 से 5% के बीच में होता है, लेकिन कुछ जेनेटिक म्यूटेशन जो किसी कारण से होते हैं हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के कारण से, इसके कारण से कैंसर होता है। और हिंदुस्तान में बहुत कम तादाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट, जो पीरियड बंद होने के बाद में जो हम लोग हड्डियां कमजोर ना हो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं, ये विदेशों में ये सबसे प्रबल कारण है। हमारे हिंदुस्तान में इसके कारण फॉर्चुनेटली कम है। रिस्क फैक्टर क्या है? अगर फैमिली में कैंसर है तो आपका मेनोपॉज लेट है, आप मीनार्की जल्दी हो गई है, फिर माहवारी जल्दी आ गई है, पहली प्रेगनेंसी लेट हुई है, या आपने दूध नहीं पिलाया है, ये दूध बहुत कम समय तक पिलाया है, एक ये बहुत रिस्क फैक्टर है। तो अगर लेडीज में ये कुछ किया गया है और उसके साथ में बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, हमारे जो डाइट खाते हैं उसमें काफी ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, इसके कारण से ब्रेस्ट कैंसर हिंदुस्तान में बहुत पाया जाता है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में फैसिलिटीज अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। 62 सिर्फ डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल है। इसमें हमारे मित्र आज नगरकर साहब बैठे हैं, इनका भी बड़ा अच्छा अस्पताल है नासिक में। आज रेडिएशन की हमारे यहाँ 1200-1400 मशीनों की जरूरत है, हमारे पास 700 हैं। 22 मशीन सिर्फ एडवांस है और एक ही प्रोटॉन थेरेपी है। 50% पेशेंट आज भी हिंदुस्तान में रेडिएशन की फैसिलिटीज बहुत कम मिलती नहीं है। सिर्फ 30% पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ बहुत सारी मशीन है, जैसे हैदराबाद में 16 मशीन है, बम्बई में 20 मशीन है। इस तरह से इट्स लॉपसाइडेड है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रश इतना ज्यादा है कि उनकी केयर बराबर नहीं होती और वहाँ डिले होता है। ये कंट्रोलेबल डिजीज है। 50% पेशेंट डेफिनेटली बचाए जा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली स्टेज पे आए तो ऑलमोस्ट 85-90% पेशेंट बचाए जाते हैं। फिर भी 1/3 जो बचे हुए पेशेंट रहते हैं उसमें आजकल हम लोग जो लाइफ होती है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, सिम्टम नहीं होते हैं। और जिनको सिम्टम लेके एडवांस डिजीज लेके आते हैं उनके सिम्टम करके उनकी लाइफ को अच्छा किया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस इसकी सक्सेस, और डायग्नोसिस के लिए विदेश ने बता दिया मेमोग्राम, सोनोमेमोग्राम है मेरा। लेकिन मैं थोड़ा उस बात से सहमत नहीं हूं कि FNAC करना चाहिए। आजकल के जमाने में FNAC मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना टाइप का इन्वेस्टिगेशन है। आजकल उतनी ही बारी नीडल से जिससे आप FNAC करते हैं, आप ट्रू कट बायोप्सी करके एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, जिससे कि हमको कैंसर के बारे में पहले से मालूम पड़ जाता है कि कौन सा ग्रेड का है, ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कि नेगेटिव है। और इसके जो ट्रीटमेंट की पद्धति होती है वो पहले से ही मालूम हो जाती है। पेट स्कैन और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो रिसर्च ने बताया बहुत जरूरी चीज है।
और हम समझते हैं लॉयंस वाले जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, अपनी लेडीज को, इनके यहाँ की जो गरीब महिला आती हैं, उनको सबको अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का ज्ञान करें तो इससे हम लोगों के पेशेंट के कैंसर की डिटेक्शन जल्दी हो जाएगी। ये एक मेमोग्राम का पिक्चर है, आप देखिए, आपके जो राइट साइड में यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट दाने दिख रहे हैं, ये प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, जिसको हम लोग DCIS बोलते हैं। इसका सिर्फ ऑपरेशन से इलाज होता है। ये एक डायरेक्ट कैंसर है जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें नीडल डाल के डायग्नोसिस कर सकते हैं। पेट स्कैन ऐसी पद्धति है जिससे ये मालूम पड़ता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ फैला है। इसके मैं तकनीकी विचारों में नहीं जाना चाहता हूँ, पर जरूरी नहीं है हर केस में ये किया जाए। सिर्फ एडवांस केसेस में या जिनका ट्यूमर बहुत बड़ा हो उसमें ये देखने से के लिए कि इनका कहीं बीमारी और फैला तो नहीं है, इससे हमको मालूम पड़ जाता है। ट्रीटमेंट से उसने बताया कि सर्जरी करते हैं। आजकल बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में 90% ब्रेस्ट के ब्रेस्ट बचाता हूँ। तो जो डर लगता है कि ब्रेस्ट निकाल देंगे वो नहीं होता है। रेडिएशन जिससे हम लोग ट्यूमर को सेल डिस्ट्रॉय करते हैं, और कीमोथेरेपी के बारे में बोला ही गया है, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के बारे में बता दिया गया है। हमारे यहाँ अब नई फैसिलिटीज आने लग गई है, जैसे साइबर नाइफ है। जैसे अगर कैंसर ब्रेस्ट ब्रेन में पहुंच गया है या हड्डी में पहुंच गया है तो उसको हम लोग स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन से या साइबर नाइफ से कम कर सकते हैं। इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी मैं खुद इंडिया में करता हूँ। आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ऑन टेबल रेडिएशन थेरेपी। टेबल पे दे दिया जाता है एक कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में, जिसमें कि आपको बाहर एक्सटर्नल रेडिएशन की नहीं, तो एक ही दिन में 2 घंटे में सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। प्रोटॉन बीम थेरेपी आ गई है जो आप फ्यूचर में काम आने वाली है। ये एक साइबर नाइफ है और ये इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी मशीन है जो हमारे पास है। हम लोगों ने करीब 52 पेशेंट इसमें किए हैं। अभी कुछ तकनीकी कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पर इसमें पेशेंट में हमने सबका पेशेंट का ब्रेस्ट बचाया है। और आज मैं खुशी होकर बोलते हैं कि मेरे कोई भी पेशेंट जिनको ये कैंसर इसका ट्रीटमेंट दिया गया वो सब ठीक, हु डाइड ऑफ अदर कॉजेस। रोबोट से भी आजकल सर्जरी हम लोग ने चालू कर दी है और फ्यूचर में शायद ये रोबोट और सर्जरी कर सकेंगे। ये एक लेडी है जिसका मैंने, आप देखिए उसका इंसिजन बिल्कुल नहीं दिखता है, नॉर्मल ब्रेस्ट है। शी इज अ 32-year-old गर्ल व्हेन शी केम टू मी, नाउ शी 38। इतना छोटा है। इसका हमने रेडिएशन दिया। इसको कहा था कि इसके बच्चे को पढ़ने जाती है, शी कांट कम एवरी डे फॉर रेडिएशन थेरेपी, तो इसको हमने ऑन टेबल रेडिएशन दिया गया और आज ये लेडी एकदम स्वस्थ और अपने घर में परिवार में काम कर रही है। सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे मैंने कहा है कि करना चाहिए, और नितेश ने कहा कि 40 के ऊपर यूजुअली द गाइडलाइन ये नहीं कहती, उसने कहा था कंट्रोवर्शियल है। मैं नॉर्मली अगर परिवार में कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो मैं उनको कहता हूं कि सिर्फ 40 साल के ऊपर एवरी 2 साल में और 50 साल के ऊपर में मेमोग्राम करना ही चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्री मेनोपॉजल लेडी को जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 दिन 8 दिन पीरियड के बाद। और लेडीज जो पोस्ट मेनोपॉजल है उनको अपने ब्रेस्ट को फील करना चाहिए, कोई भी तारीख कैलेंडर में चुनना चाहिए। अगर जरूरी है तो फिर अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। तो अभी कोई प्रूवन मेथड तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ज़्यादा हैवी खाना आफ्टर सर्टेन एज जो नहीं करना चाहिए। ये प्रूव हो गया है कि एक्सरसाइज से 30% कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर का रिडक्शन होता है। बहुत सारी दवाइयाँ यूज करी गई हैं प्रोफेनेटी के लिए, हमारे कुछ गोलियां हैं वो दी जाती हैं। हाँ, आजकल एक जो हम लोग के जीनोम की जब से डिस्कवरी हुई है 2002 में, उसके बाद से एक नया हम लोग को तरीका मालूम पड़ा है कि कैंसर कैसे होता है, जीन से कहाँ आता है। और एक ब्राका जीन होता है, BRCA1 और 2 जीन होते हैं जो बॉडी में रहते हैं, और जिनके परिवार में ये ब्राका जीन पॉजिटिव होता है उन पेशेंट्स के लिए आजकल 2 टाइप की हम लोग कहते हैं कि हम लोग आप इस परिवार को क्लोजली फॉलो अप करना चाहिए। अंजेलिना जोली एग्जाम्पल है, उनकी माँ को कैंसर हुआ, उनकी नानी को कैंसर हुआ, तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट को निकाल दिया। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी। हिंदुस्तान में प्रचलित नहीं है, पर बाहर इंडिया के बाहर बहुत प्रचलित है। इसमें हम लोग पूरा ब्रेस्ट निकाल के उसमें रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, शायद अशोक गुप्ता साहब उसके बारे में बताएंगे। और बहुत खास बात मेरी ये सलाह रहती है लेडीज को, खासकर जो उनका वेट ज्यादा है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ज्यादा है, कोशिश करना चाहिए अराउंड 45-50 के आसपास। वो बॉडी मास इंडेक्स को अगर कम कर सकेंगे तो हार्मोन पॉजिटिव पेशेंट में इसका इंसिडेंस कम होने की संभावना है। तो देखिए डाइट जो है, मैंने जैसे कहा प्लांट फूड्स वाली डाइट खाएं, अल्कोहल का सेवन करती हैं तो अवॉइड करिए या मॉडरेशन में करिए, नो स्मोकिंग, और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो बस इतनी सलाह है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए लॉयंस क्लब अपने आप आगे आए
और खासकर महिलाओं के ग्रुप में, गरीब तबके में भी ये शहरों में हो रहा है। तो छोटी मोटी झुग्गियों झोपड़ियों या आसपास के छोटे इलाकों में जाकर इन लेडीज को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का पार्ट सिखाएं। ये बड़ा सिंपल है। और जैसे नितेश ने भी कहा, मैं भी कहूंगा, ब्रेस्ट कैंसर हो गया या लंप है तो छुपाए ना, छुपाने से वो बीमारी बढ़ती है, अर्ली स्टेज में लाइफ बचती है। धन्यवाद बहुत बहुत, और बंसल साहब का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे बुलाया और आज के दिन में आपके साथ सहभागी होने का अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू सिमरन जी। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी। इतने आसानी से आपने बताया कि आप थोड़ा सा अगर हेल्थ का केयर किया जाए तो बहुत हद तक प्रिवेंट हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना नॉलेज दिया और ऑफ कोर्स इतना कुछ बताया कि हम सच में ये सब नॉलेज चाहेंगे कि आप स्प्रेड कीजिए टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक। प्लीज फील फ्री टू शेयर दिस कुड रियली बी हेल्प टू एवरी गर्ल, every lady, every woman in this world. Thank you very much. We are truly, truly delighted and honored to have with us our respected, very Dr. Ashok Gupta. Well, ladies and gentlemen, let me please tell you all, our recipient of the most prestigious Padma Shri in 2009. May we please welcome Padma Shri, Dr. Ashok Gupta, MS, MCH, FRCS, FNAMS, DSA, Masters of Philosophy of Hospital and Health System Management. Sir, respected Padma Shri sir, हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे of the modalities of immediate reconstruction or restoration of the breast shape जो remove करता है cancerous tissues को. Please इसके बारे में if you could kindly guide us. Thank you, Simran. And to begin with, I also want to thank Akhil ji, with whom I've been associated for almost a decade. And it was a novel idea that he talked to me and he suggested the names, and I shared the name of Dr. Sanjay Sharma and Dr. Ritesh, and I'm very happy that they have really enlightened everyone about the breast cancer. Yes, sir. It has been my privilege to work at some of the leading hospitals in the world, including Royal Marsden Hospital in London, which we are primarily doing, which started doing the breast reconstruction as early as 1975 or 79 onward. I've been involved with them from 1979, and almost for the last 40 years, I've been doing breast reconstruction following cancer extirpation surgery. We call it cancer surgery, which is basically used to be very mutilating surgery to begin with. When I was a resident in general surgery and plastic surgery almost 50 years back, the only option was to remove everything around the chest, including lymph nodes, and that used to have a lot of complications. The radiation was not so safe. These things lead to a lot of necrosis and difficult problems. Chemotherapy was also not safe. In the last 50 years, things have really changed so much in the cancer treatment that it is practically has a very negligible side effect, which Dr. Sanjay Sharma has also shared the intraoperative radiation, which is the latest technique. And also, over the last 20 years, we have moved forward as the primary reconstruction following a cancer surgery on a breast, whether it is a small lump is removed, whether it is a entire chunk of breast is removed, we are able to undertake the primary reconstruction. Some of the well-known celebrities who have undergone a preventive breast tumor removal, they all known, everybody knows. They also underwent primary reconstruction, and nobody can make out that they have undergone surgery. So with this, I would like to share some of my thought on the breast reconstruction. And again, this is also a breast reconstruction awareness day, 18th of October, which I'm happy that I'm talking on this particular day. Can I have the next slide, please? Can we try having the next slide, if Namrata and Kush, if you could kindly help us? Yeah, Yes. sorry. Yes. I mean, the very fear of everyone कि भाई यदि हमने breast निकाल दिया तो we will lose our femininity, and the breasts are very symbol of femininity. And also, if you have a mastectomy because of breast cancer, you can either opt for a reconstructive surgery immediately after some time or after complete healing. And the primary aim for us is to can restore symmetry between both breasts
by replacing skin, breast tissue, and including we have gone to the stage of doing a nipple areola reconstruction. So it is extremely successful surgery. It is the most commonly performed surgery across the world, and particularly in the United States, where it is one of the most performed reconstructive surgery. In India, it has not become so popular, but we have different type of techniques. The amount of reconstruction will depend on the extent of mastectomy, which is a removal of the breast, and also depending on the location of the removed tumor. And since it is covered as a part of the treatment of the disease, most of the insurance companies are paying for the reconstruction all over the world. So people should not fear that if it is not covered by insurance, it is not a cosmetic surgery, it is part of the treatment of a breast surgery. Now, those who do not want to have the surgery for reconstruction, because it's a major trauma for somebody in the family to have a cancer of the breast. Second big trauma is to removal of the cancer of the breast. And many of them do not like to have another major surgery of 4 to 6 hours time to have a reconstruction. So for those ladies who do not want to go for a reconstruction immediately, they can also have what is called as an external prosthesis, which are also shaped like a breast, and they can be very successfully used for in the form of a breast pad, and which gives a almost satisfactory symmetry of the breast. I would not really go into the detail, but इसमें दो चीज मुझे बताना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन जब करते हैं, जो मतलब इमीडिएटली जब ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दिया, जैसे मैं बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर संजय शर्मा, हम लोग साथ में कई बार ऐसे कर चुके हैं कि उन्होंने कैंसर निकाल दिया, मैं आके तुरंत उसको रिकंस्ट्रक्शन करके इट बिल्ट अ कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट. और उनको कई बार उनको एक तो उसका एडवांटेज ये है कि जब ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं, जब एडवांस डिसीज है और उनको यदि मालूम है कि कोई दूसरा डॉक्टर उनके पास में रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए है, so there is no limitation. They can go much beyond, much radical to remove maximum tissue without disfiguring the breast, because they know that there is somebody to assist them for restoring the breast form, etc. So it is a very useful combination of a oncosurgeon and a plastic surgeon working together at the same hospital at the same time, which is a common trend now. Almost all hospitals across the city of Bombay and most of the major centers across India are doing this primary reconstruction. So ladies should not fear, and it is very safe. 4 या 5 घंटे हमको लगते हैं, but at the end of the surgery, we can almost give a near normal looking breast. Of course, it takes some time, etc. So there are different techniques, which Ritesh has also mentioned. We can use implant, we can use fat graft, we can use, but the most commonly performed technique जो है, वो हम body के अपने part लेते हैं. जैसे abdomen से हम लेते हैं टिश्यू, abdomen से लेके मसल के साथ में फैट और स्किन ले सकते हैं. बैक से हम ले सकते हैं, बैक की जो मसल है वहाँ से मसल और स्किन लेके उसको हम ब्रेस्ट का शेप दे सकते हैं. और इसके होने के बाद में लगभग 3 से 6 महीने वेट करके जब पूरा शेप आ जाता है, तो जैसे इसमें ये एक प्रकार का है, जस्ट टू शेयर कि भाई दिस इज द अमाउंट ऑफ tissue which is removed, this is what is immediately after healing. Sometimes patients do not like to have a reconstruction immediately. हम उसको 6 महीने वेट करते हैं, 6 महीने में पूरा हील होने के बाद में, उसके बाद में then would like to do reconstruction, and इस प्रकार से reconstruction करके उसका फिर हम उसमें निपल एरियोला भी बना सकते हैं. Of course उसमें फंक्शन नहीं आता है, जैसे कॉमन टेक्निक है, abdomen से लेके हम टिश्यू लेते हैं या फैट डाल सकते हैं, abdomen से लेके टिश्यू लेके बना सकते हैं. And finally we can also recreate a nipple areola complex to give a symmetry which is almost like a normal. So this builds in a confidence of a lady. She can have all sort of outdoor activities, which is not so common in India, but with the younger age people they are doing. But in US, one of the commonest indication for breast reconstruction is so that they can go to the beach, they can enjoy their life, they can have, sometimes it is again for the Western, they can have a better partnership with other people also. So it is one of the very thing. And इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने के बावजूद भी यदि ट्रीटमेंट किसी को कीमोथेरेपी देना है, रेडिएशन देना है, या उसमें फिर से कहीं रिकरेंस हो जाता है, सो दैट डज नॉट इंटरफियर विद द फर्दर ट्रीटमेंट. ना तो उसमें डिटेक्शन में कोई तकलीफ होती है, ना उसमें आगे के ट्रीटमेंट में कोई तकलीफ होती है. जहाँ तक पेन का सवाल है, 2 चीज इसमें जरूर है कि रिकंस्ट्रक्शन में सेंसेशन कई बार बराबर नहीं रहते हैं. उसमें निपल एरियोला में
फंक्शन नहीं रहेगा कि यदि किसी को लगता है कि मुझे उसमें मिल्क हो या कुछ हो तो ये उसमें नहीं होगा। लेकिन यदि जो ब्रेस्ट स्पेरिंग मैस्टेक्टॉमी जो आजकल कॉमन है, नोबडी रिमूव द एंटायर ब्रेस्ट, दे डू द लंपेक्टॉमी और ब्रेस्ट स्पेरिंग मैस्टेक्टॉमी। उस सिचुएशन में हम या तो इम्प्लांट से या फैट ग्राफ्ट से, या ज़्यादा एक्सटेंसिव रहा तो मसल या फैट लेके ब्रेस्ट का शेप लगभग पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दूसरे साइड का ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो या शेप नहीं हो, तो उसमें भी उस साइड की सर्जरी करके उसको शेप को लगभग मैचिंग कर सकते हैं, so that people can enjoy their life. The whole idea of reconstructive surgery is to build in confidence of the person, give them the familiarity back to them, and also preparing them for undergoing a early surgery, a radical surgery, or a definitive surgery, so that their disease can be taken out completely. And with this, again, I want to thank Akhil ji and Simran ji for giving me this chance to share my word about the reconstruction after the breast surgery. Thank you once again, everyone, and all the Lions member. Incidentally, I am also a member of the Lion family. So it's a big privilege for me to share the Lions. Thank you very much. पद्मश्री डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने इंसाइट्स दिए और वो रिलैक्स जो आपने फीलिंग दी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद इमोशंस ऑल्सो, क्योंकि इमोशनली इतने टूट जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें बताया कि यस, हम भी नॉर्मल हो सकते हैं इवन आफ्टर आपको पता चले कि यस यू आर फेसिंग and you are going through breast cancer. So thank you to all our esteemed doctors, and thank you at first to Lions Club of Bharat Icon कि ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ऐसे प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सब कुछ पहले से ही जान सकते हैं। सारी जानकारी रखना एक बात है, फॉलो करना दूसरी बात है, लेकिन ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पेशली नवरात्रि के ओकेजन पर, हमें ये भी दिलाता है याद कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ द वुमन को भी यूज करना है, और जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, जो हमें नॉलेज मिल रहा है, इसे जरूर हम सब अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम मुलाकात करेंगे, जैसे हमारे सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, हम इनवाइट करना चाहेंगे अगेन वन ऑफ आवर टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट जो ब्रेस्ट, थोरासिक और रोबोटिक्स के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर राज नागरकर जी। और राज नागरकर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे द डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट एंड द कॉम्प्लेक्सिटी, और जो सर्जरी हम करते हैं फॉर प्रूव्ड कैंसर कंडीशंस के बारे में प्लीज हमें हाईलाइट कीजिए और हमें इसके बारे में बताइए। Respected Dr. Raj Nagarkar. Namaste. Thank you very much, Simran ji and Akhil ji, for this opportunity. In fact, अभी संजय शर्मा सर जिन्होंने बताया, सर मेरे टीचर थे टाटा हॉस्पिटल में, उनसे काफी कुछ सीख चुका हूँ और आज उनके सामने अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट काफी सारी चीजें अग्रवाल सर, डॉक्टर संजय शर्मा सर ने ऑलरेडी शेयर की हुई है। What I would like to bring to a notice कि पहले जैसे मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस जो है उसमें सिंगल मोडालिटी ट्रीटमेंट यूज की जाती है। मतलब अगर किसी को सर्जरी करनी है या हड्डी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर सब कुछ कर सकता है। कैंसर ये एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, बिकॉज इसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की जाती है। किसी भी कैंसर पेशेंट को एक ही तरह की ट्रीटमेंट से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। सिमरन जी, क्या मैं अपनी स्लाइड शेयर कर सकता हूँ प्लीज? जी सर, जरूर सर, एब्सोल्युटली जरूर सर। हाउ डू आई डू इट? कैन समवन हेल्प मी, बिकॉज आई एम नॉट एबल। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर सर। तो मेरी स्लाइड्स मेरी स्क्रीन के ऊपर है, अगर कोई मुझे हेल्प कर दे तो मैं वो शेयर, एक मिनट सर, उधर ही सिर्फ शेयर स्क्रीन आएगा आपके, उसमें शेयर स्क्रीन आएगा ग्रीन कलर का, बस उसका। अच्छा, आर माय स्लाइड्स विजिबल नाउ? सर हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बिल्कुल सर, परफेक्ट, यस सर, यस आई सर। थिंक काफी सारी चीजें ग्लोबल कैंसर बर्डन या फिर कैंसर कौन से टाइप के बारे में होता है, ये सब चीजें बात हो चुकी है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जो लेफ्ट साइड अपर एस्पेक्ट को जो स्लाइड देखेंगे आप, इसमें पिछले 25 सालों में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड क्या चेंजेस हुए ये आपको दिखेगा। इसमें क्लियरली पता चलता है कि पहले जो बीमारी 50 साल के बाद सबसे कॉमन बीमारी थी, अभी काफी सारे पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो 30 से 50 साल की उम्र में हमें देखते हैं। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेशेंट्स जिनकी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ
ये पेशेंट 40 साल से कम उम्र में रहते हैं और मैं ऑन एन एवरेज हर साल मैं 400 से 450 ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी नासिक में करता हूँ। अभी जब ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस वगैरह सिम्टम्स के बारे में सीनियर्स बात कर चुके हैं, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा, बट देयर आर 5 स्टैंडर्ड बेसिक कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इसमें सर्जरी है, रेडिएशन है, हार्मोन थेरेपी है, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। लेकिन ये ट्रीटमेंट में कोई भी एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं रहता है। मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि हर एक पेशेंट को पहले सर्जरी की जाए, बाद में रेडिएशन किया जाए या बाद में कीमोथेरेपी दी जाए। हर एक पेशेंट, अभी आजकल मेजॉरिटी पेशेंट्स में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट जो की जाती है, अगर ट्यूमर 3 या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होता है तो पहले कीमोथेरेपी देकर ट्यूमर को डाउन स्टेज किया जाता है और फिर ऑपरेशन किया जाता है। शर्मा सर ऑलरेडी बता चुके, आज हमारी प्रैक्टिस में मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स, इवन इन अ टियर 2 सिटी लाइक नासिक, 93% ऑफ आवर पेशेंट सर्जरी जो ब्रेस्ट कैंसर की होती है उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया जाता है, ब्रेस्ट निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। अभी अर्लियर ऐसा था कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए मतलब इंटेंशन था कि जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए। अभी गोल ये नहीं है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। पेशेंट की जिंदगी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो रहनी चाहिए और उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही जरूरी है। अगर पेशेंट को हम 20 साल की जिंदगी, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है तो उसमें मतलब नहीं है। सो पेशेंट हैज टू फील कंप्लीट एंड सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, दीज आर यूज्ड एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। यहाँ पे सर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हमारे पैथोलॉजी कलीग्स रहते हैं, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, सारे लोग एक साथ बैठकर पेशेंट के लिए डिसीजन लिया जाता है। कुछ मिथ्स और फैक्ट्स है ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड जो मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने कवर नहीं किया, इसलिए मैं बताना चाहूंगा ये लायंस क्लब के माध्यम से। कुछ लोगों को एक गलतफहमी, ये मिथ है कि मैमोग्राम अगर हम करते हैं तो इससे बहुत सारा रेडिएशन होता है जिसके कारण कैंसर हो सकता है, तो ये गलतफहमी है। मैमोग्राफी में बहुत लो डोज में रेडिएशन यूज किया जाता है और ये पूरी तरह सेफ है। दूसरा एक मिथ ये है कि जिन लेडीज में छोटी ब्रेस्ट रहती है उनको कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं, तो ये भी एक मिथ है, ये गलतफहमी है। एक गलतफहमी ये भी है कि मेल्स में, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। एक्चुअली आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से विदर्भा सर्जिकल सोसाइटी ने एक सर्जिकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैंने 4 ब्रेस्ट सर्जरीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था। जिसमें पहली सर्जरी जो की थी, मैंने एक मेल ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की थी और ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में मैंने 160 मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की गई है। सो इट इज नॉट अनकॉमन टू हैव मेल्स विद ब्रेस्ट कैंसर। सिर्फ फीमेल्स में ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये गलतफहमी है। दूसरी एक गलतफहमी है कि अगर मेरी को कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। 65% लेडीज में जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, इनमें पहले कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं हो सकती। इट कुड बी जस्ट अ स्पोरेडिक जीन म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं। और एक गलतफहमी ये है कि अगर आपकी छाती में गांठ लगती है तो वो कैंसर की ही होगी। इनफैक्ट 80% लेडीज में जो ब्रेस्ट में गांठ लगती है ये नॉन कैंसरस या बिनाइन रहती है, जरूरी नहीं कि कैंसर के रिलेटेड होते हैं। इसलिए आपके ब्रेस्ट में अगर गांठ है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन डर भी मत जाइए। अगर पेन नहीं भी हो रहा होगा तो वो सादी गांठ हो सकती है, लेकिन इज ऑलवेज बेटर टू सीक अ मेडिकल ओपिनियन। ब्रेस्ट कैंसर अफेक्ट्स ओनली वुमेन ओवर द एज ऑफ 45, ये गलत फहमी है। मैंने मेरे लाइफ में सबसे यंग लेडी जिसका ब्रेस्ट कैंसर, डक्ट कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, जिसका ऑपरेशन किया है, वो मात्र 21 साल की लड़की थी जिसका 21वें साल में ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड सर्जरी करनी पड़ी थी। एक दूसरी गलतफहमी ये है कि अगर हम रेगुलर मैमोग्राफीज करते हैं तो हमें कैंसर नहीं होगा। एक्चुअली मैमोग्राफीज का इंटेंशन है आपका कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में करना, न कि कैंसर प्रिवेंट करना। आज सवेरे ही मुझे एक पेशेंट के रिश्तेदार थे, उन्होंने फोन किया। उनको एक गलतफहमी ये थी कि अगर हम ब्रेस्ट सपोर्ट या ब्रेसियर्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है।
तो ये भी एक गलत फहमी है। अगर आप ब्रेस्ट सपोर्ट्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से कैंसर नहीं हो सकता है। मैं ज्यादा ट्रीटमेंट के बारे में ना बोलते हुए, आप हमारे लायंस के जॉइंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर ने शुरुआत में ही बोला था कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो हम अगर ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करना चाहे तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है। हम सुन रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में एवरी 100,000 पॉपुलेशन पर ईयर में ऑलमोस्ट 25 से 35 तक पहुंच चुका है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? व्हाट आर द अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स जो हम बोलते हैं? फीमेल जेंडर इज ऑब्वियसली वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ते जाएगा। इनफैक्ट इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन। एक वक्त था 10 साल पहले जहां पे सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर था, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो चुका है। 3 से 10% पेशेंट्स में हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। जिन बच्चियों में अगर मासिक पाली जो मेनार्के रहता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कम एज में शुरू होते हैं या लेट खत्म होते हैं, लेट मेनोपॉज अर्ली मेनोर्की, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर बचपन में किसी और कारण से छाती के एरिया में अगर रेडिएशन दिया गया है तो उससे भी आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है। आजकल हम प्रोफेशनल करियर बढ़ रहा है, ऑल वुमेन आर इक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन डिलेड चाइल्ड बर्थ या नॉट हैविंग चिल्ड्रन, अगर बहुत देर से शादी होती है और अगर आप बच्चे नहीं होते या कम समय तक अगर माँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क फैक्टर माना जाता है। आजकल अर्बनाइजेशन में अगर हम बहुत ज्यादा फैटी फूड्स लें, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स अगर लें, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हार्मोनल मेथड्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, वजन अगर आपका बढ़ रहा है और एक्सरसाइज कम हो रही है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए आपको कारणीभूत हो सकते हैं। लेकिन ये सारे कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स है। जैसे मैंने बताया, इनमें से 95% फैक्टर्स ऐसे जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये अवॉइड करने का एक त्रिसूत्री हम जो कहते हैं, मेनली रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप कर लीजिए। ऑफ लेट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ हेल्दी फूड्स विच प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। सो आई एम श्योर आप में से जो नॉन मेडिको बैकग्राउंड में है या फिर जो होम मेकर्स है, उनको इंटरेस्ट रहेगा कि कौन से ऐसे फ्रूट्स है जिसमें क्रूसीफरस फ्रूट्स है, नट्स है, बेरीज है, अनरिफाइंड ऑयल्स, मशरूम्स, ट्रेडिशनल टी, green vegetables and herbs, along with oranges and vegetables and citrus fruits. All of them are known to reduce the risk of developing cancer. In fact, हम लोग as doctors हम लोग बार बार पेशेंट्स से उनके ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बोल रहे थे, I am very happy as a doctor, I am very happy as a father, I would put it. ये लॉकडाउन के दरमियान my son who is doing his MBBS third year 6 महीना नासिक में था और हॉस्पिटल में रेगुलरली आते टाइम one day he suddenly came up to me, ले पापा इतनी बड़ी टीम है, all of you all are talking about treatment of cancer, लेकिन जो पेशेंट्स पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जो पेशेंट्स अच्छे हो चुके हैं, why is it कि ये पेशेंट्स जो नए पेशेंट्स है उनके साथ बात क्यों नहीं करते? अगर वैसा हो सके तो it will be very good and we will be able to, like, you know, treatment or survival for one can be hope for another. So based on this, he completed his entrepreneurship from Walton, and as part of the project he started an initiative called as Befriend Cancer. और इसी महीने के 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को, मनीषा कोइराला जो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, she has become a part of Befriend Cancer initiative. और Befriend कैंसर का एंटायर इंटेंशन है कि जो पेशेंट्स पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वो पेशेंट्स जो नए पेशेंट्स हैं उनके साथ बात करके, उनके साथ डिस्कशन करके
उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। और अगर इस तरह से जो पेशेंट्स पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, ये पेशेंट्स दूसरे पेशेंट के सामने आ सके, तो जो समाज में जो डर है कैंसर के लिए रिलेटेड कि कैंसर मतलब मृत्यु या कैंसर मतलब डेथ, या कैंसर होने के बाद आप अपनी रेगुलर लाइफ नहीं जी सकते पहले की जैसे, तो ये कॉन्फिडेंस हम पेशेंट्स में दे पाएंगे। अगले आने वाले 10-20 सालों तक ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बल्कि बाकी के कैंसर्स का भी इंसिडेंस बढ़ने वाला है सोसाइटी में। इंडिया इज अ यंग पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया में इंसिडेंस का कैंसर का इंसिडेंस कम है। इनफैक्ट एज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया में कैंसर का इंसिडेंस कम है, ये मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन 70% हमारा पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र में है। अगले 10-20 सालों में जैसे ही एजिंग होगा, हमारा जो यंग पॉपुलेशन 40 के आसपास जाएगा, तो ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बाकी के कैंसर्स का भी इंसिडेंस बढ़ने वाला है। तो अवेयरनेस अगर हम स्प्रेड कर सके without creating a panic in the society, we have to give a confidence in the society that cancer does not happen only to your neighbor's household, ये हमारे घर में भी हो सकता है और ये प्रिवेंट किया जा सकता है और कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आने वाली पीढ़ी, आने वाली दिन हमारे सोसाइटी के लिए जरूरी और अच्छे रहेंगे, क्योंकि एज अ कैंसर सर्जन मैं ये बताना चाहूंगा और एज ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं, कैंसर ये बीमारी ऐसी है जो एक व्यक्ति को नहीं होती है। काफी टाइम एज डॉक्टर्स हम सिर्फ एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली उसमें डिस्टर्ब होती है। तो अगर हमारी पूरी फैमिली को बचाना है, और खास करके लेडीज में, महिला ये घर का पिलर्स रहती है। If a homemaker, if a mother, if a wife, if a sister is suffering, obviously the entire family is going to be at loggerheads. So हमें हमारे घर की महिला की हेल्थ, ये हमारी जिम्मेदारी है। नवरात्रि के माध्यम से जो लायंस क्लब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मुझे इसमें पार्टिसिपेट होने का एक अपॉर्चुनिटी दी, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और यही कहूंगा कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउसहोल्ड। हम अगर हमारे घर में अपनी महिला का सम्मान कर सके, उनके हेल्थ के बारे में हम अगर जागरूक रह सके, तो आने वाले दिन सबके लिए अच्छे, निरोगी, स्वस्थ और सदृढ़ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज नागरकर जी। आपने जिस तरीके से हम सबको बताया कि वो सिर्फ एक इंसान को, एक लड़की को या वुमन को, लेडी को नहीं होता है, बट पूरी फैमिली को होता है। और सच कहना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं था कि मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। सो थैंक यू कि आपने हमें सारी जानकारियां दी और ये भी कहा कि यस, आगे हमें बहुत संभल कर रहना है क्योंकि कैंसर बढ़ने वाला है, बिकॉज इंडिया इज नोन एज यंग इंडिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जरूर हमारी डॉक्टर से पूछना चाहूंगी, हमारे सभी डॉक्टर से टुवर्ड्स द एंड अगर हमें वक्त मिले, तो सर ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर 10 साल पहले ज्यादा था और अब ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये क्यों है? और अगर आप हमारे एस्टीम डॉक्टर्स अगर शेयर कर सकें, पॉसिबल है कि गोल्डन रूल क्या है टू स्टे अवे फ्रॉम कैंसर? आपने हमें ऑलरेडी बताया है एक्सरसाइज, डाइट, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीजें शुरुआत में ही हमें बताया हमारे रिस्पेक्टेड जो हमारे लाइन सर हैं, हेमंत राज सेठिया सर, उन्होंने कहा कि यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ही इज आल्सो अ डॉक्टर, तो उन्हें पता था, तो उन्होंने कहा फ्लैक्स सीड्स। तो ऐसे एक गोल्डन रूल अगर आप सब हमें टुवर्ड्स द एंड इन 1 सेंटेंस बता सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी आप जितना हो सके ये स्प्रेड कीजिए। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं ऑफ लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। एंड ऑफ कोर्स हमारे एस्टीम डिग्निटरीज जो हमारे साथ हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन शशिकांत मोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑनरेबल वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर ख्वाजा मुदासिर सर, और हमारे ऑनरेबल वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन हेमंत राज सेठिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने ये ब्यूटीफुल जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं टूवर्ड्स लाइफस्टाइल। जी हाँ, जो टॉप मोस्ट कोच हैं लाइफस्टाइल की, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी का, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंज करने से हम बिल्कुल कैंसर के सिम्टम्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो सुमन अग्रवाल जी, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि फूड वाइज आपके हिसाब से सबसे मेन कल्प्रिट
कौन सा है कैंसर का, डिजर्ट है, शुगर है, या ये कंप्लीट लाइफस्टाइल है, और विच फूड्स शुड बी टेकन यू नो पोस्ट कैंसर, किसका कैंसर क्योर हो गया है, तो वो डाइट के, उस डाइट के बारे में भी आप हमें बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी से। Thank you, Simran, so much. And I'm honored to be on this platform with such dignitaries. And thank you to Akhilji Bansal and the whole Bharat Icon family. And so I have been in the field of nutrition since almost 19 to 20 years. And my dream to come into nutrition was how could I prevent diseases? That was my main aim. That how can we forget about कैंसर, हाउ कैन बी इवन, हम कैसे अपने आप को सर्दी से होने से भी रोक सकते हैं, वो मेरी खोज थी। इसीलिए मैंने ये न्यूट्रिशन की पढ़ाई शुरू करी। एंड और इसमें मेरा कैंसर तो ऑफ कोर्स हम देखते ही हैं कि बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, जैसे कि सब एस्टीम डॉक्टर्स ने बताया कि, और हम भी बहुत देखते हैं, हमारे जो clients आते हैं from not only in Mumbai, I'm based out of Mumbai, and but from all over the world we have clientele. So हम खोजने की कोशिश करते हैं, हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसको कैंसर हुआ। तो हम उनका स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो क्या आहार खाते थे और वो क्या करते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनको क्या क्या डिजीजेस थी। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसी एक कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होती जिससे कि आपको कैंसर होता है। अब सब डॉक्टर्स को पता है कि जेनेटिक इज द मेन थिंग। जेनेटिक हिस्ट्री होने से आपके कैंसर के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वन इज ऑफ कोर्स जेनेटिक्स। सेकेंडली लाइफस्टाइल, आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मार्क्स टू लाइफस्टाइल कि हम किस तरह की लाइफस्टाइल व्यक्त करें जिससे कि हमको कैंसर न हो। तो हम लोग वो कैंसर को हम ऐसे लोगों को हम ध्यान देते थे जिनके फैमिली में हम हर जो क्लाइंट आता था उसकी जेनेटिक हिस्ट्री लेते थे, और जिनको भी फैमिली में कैंसर होता था उनको हम एक एग्जैक्ट प्रोग्राम देते कि आपको अगर चाहिए कि आपको कैंसर न हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट में आता है कि आप सोचिए कैंसर के लिए मेन थिंग, आप सोचिए कि हमारा ये शरीर है, आप सोचिए कोई भी कमरा है, उसमें आप अगर आपको उसको चारों तरफ से बंद कर दें, उसमें ऑक्सीजन न जाए, हवा न जाए और धूप न पहुंचे, तो उस कमरे का क्या होगा? उस कमरे में कीड़े लगेंगे। कैंसर भी एक तरह का कीड़ा है जो कि मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब हवा और धूप, उसको आप साइंस में क्या बोलेंगे? विटामिन डी एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन्स एक्सरसाइज, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने एम्फेसिस किया है। अगर आप अपने बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखते हैं, सो इससे क्या होगा आपको कि आपके you will fight cancer because your oxygen is reaching every small cell of your body. That is one thing. So oxygenation of body is very important. Think you are giving air to the room. So your body is your temple. You have to air your body. So that is the first thing. Exercise should not be by the way. It should be the way of life. It should be like religion. ऐसा होता ही नहीं कि मैं सोचूं कि मैं कब एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। एक्सरसाइज इन द सेंस पर डे, मैं देयर इज ऑलवेज 1 घंटा असाइन होता है हमारे लिए एक्सरसाइज के लिए, और हम हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको महत्ता बताते हैं कि आपको ये करना ही चाहिए। सो दैट इज अबाउट एक्सरसाइज। नाउ विटामिन डी, सब डॉक्टर्स जानते हैं कि जो भी कैंसर के पेशेंट आते हैं उन सब में एक कॉमन चीज होती है कि विटामिन डी उनका कम होता है। विटामिन डी हमको ऑफ कोर्स सन से मिलता है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में वो उसको धूप को वो विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। दैट इज हाउ वी गेट विटामिन डी। तो अपना विटामिन डी जरूर से चेक कराएं। तो इससे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्चुअली नॉट वेजिटेबल्स, नॉट फ्रूट्स, इट इज द प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व फॉर प्रोटीन हमको किस में मिलता है? वेजिटेरियंस को दालों में और दूध दही में और पनीर में या चीज में मिलता है, और नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन दाल में पल्सेस भी आते हैं, सोयाबीन भी आता है ऑफ कोर्स, एंड थोड़ी कुछ मात्रा में हमको नट्स में मिलता है, सीड्स में, एंड थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, जैसे कि रोटी में, ग्रेन्स में, सब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है। बट मेन प्रोटीन वेजिटेरियंस को केवल पल्सेस में से और मिल्क प्रोटीन से मिलता है।
सेकेंडली एग्स एंड चिकन एंड मीट एंड फिश, उसमें प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन इज योर फर्स्ट डिफेंस टू काउंटर एनी डिजीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आहार में प्रोटीन का ख्याल रखें. मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती कि आपकी डाइट में केवल प्रोटीन होना चाहिए, आपको कीटो करना चाहिए, बट प्रोटीन बैलेंस में दैट मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 आहार में आपका प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है. अगर आप सोचें कि आप रूखी चपाती खाएं और उसके साथ में आप हरी सब्जी खाएं और वो आपके लिए बहुत अच्छा आहार है, वो नहीं है. क्योंकि रूखी सब्जी और रूखी रोटी और सब्जी केवल आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं. बट उसमें अगर आप दही डाल लें या सब्जी में थोड़ा पनीर बना लें, या आप दाल ले लें, या आप चिकन ले लें या फिश ले लें, तो आपकी आहार की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है. क्यों प्रोटीन कितना जरूरी है? फ्रॉम टॉप टू हेड टू टो, एवरी फंक्शन इन योर बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन. हेयर आपका 92 से 95% प्रोटीन से बना होता है. एंटीबॉडीज आर मेड फ्रॉम प्रोटीन, मसल्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन. जो भी आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, विच इज गैस्ट्रिक जूसेस, ऑल द बाइल दिस थिंग एंड हॉर्मोन्स, एंड उसके बाद में जितने भी बॉडी में लिक्विड प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है. हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट भी प्रोटीन होता है. तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी में प्रोटीन का कंजम्पशन जरूर रखें. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आप अगर सोचें कि एक ग्लास जूस ले लिया या फ्रूट ले लिया और उसके साथ में सैंडविच ले लिया, उपमा पोहा ले लिया, तो इट इज वेरी लो कैलोरी एंड बहुत हेल्दी है. बट एक्चुअली हेल्दी नहीं है. क्यों? बिकॉज इसमें प्रोटीन नहीं है. अगर वही आप पोहा या उपमा जो कि लाइट फूड है, उसके साथ में आप अगर दही लें या दूध लें तो बहुत अच्छा है. टोस्ट के साथ में अगर आप अंडे लें, या आप टोस्ट के साथ में मिल्क या चीज ले लें, या पनीर टोस्टी ले लें, तो वो भी बहुत अच्छा है. पराठे के साथ में दही लें, वो भी बहुत अच्छा है. नॉर्थ इंडियन में पराठा दही इज वेरी कॉमन. साउथ इंडियन में इडली सांभर इज वेरी कॉमन. सांभर बिकम्स योर प्रोटीन. सो दिस इज द बैलेंस इज रिक्वायर्ड. सेम थिंग फॉर लंच एंड डिनर. हमको दाल, चिकन, फिश, दही, पनीर, इन सब में से एक चीज जरूर होनी चाहिए अलॉन्ग विथ वेजिटेबल. वेजिटेबल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो हमको खूब सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स देता है, जो कि विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो वो भी हमारे लिए जरूरी है. एंड ऑफ कोर्स carbohydrate, which is rice, chapati, whether you make it from bajra, jowar, millets, all that is fine. So you can choose any carbs, any protein, any kind of fiber, but it has to be balanced. So the protein is the third most important thing. उसके बाद सबसे लाइफस्टाइल में एक मैं आपको बताना भूल गई, हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, बट स्लीप, नींद हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते. वो हमारा फर्स्ट डिफेंस है टुवर्ड्स एनी एलिमेंट. अगर आपने सब प्रोटीन खाया, आपने सब विटामिन लिए और आपने सब कुछ ठीक से किया, बट आपकी नींद कम रह रही है day after day for many days, then you are very prone to getting cancer, whether it is breast cancer or whichever cancer. आपके chances बढ़ जाते हैं अगर आपने नींद नहीं करी. So 7 to 8 hours sleep and good quality sleep is very 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 important for everyone who must know to prevent not only cancer but any disease. Then the fifth most important thing which I tell my clients who are prone to cancer or who have already had cancer is how to avoid consumption of desserts, ice cream, cold drink, aerated drinks, chocolates, एंड वेरी हाई कार्ब ड्रिंक्स एंड जंक फूड. ये सब चीजें होती हैं, वो हमारे बॉडी में शुगर को बढ़ाती हैं. एंड कैंसर के मल्टीप्लाई होने के लिए शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही आप अपने बॉडी को शुगर स्टार्व बनाते हो, तो कैंसर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बताया है कि अपने आहार को आप अच्छा रखें और उसको वेल बैलेंस रखें और ये सब चीजें अपनी उसमें से निकाल लें, तो आपको चांसेस हैं कि आप इस डिजीज को फाइट कर सकेंगे. वी हैव helped many people जिनके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर था, बट विथ राइट गाइडेंस टुवर्ड्स द राइट फूड उनको हम लोग ने बताया है कि आप, ऐसा नहीं है कि डिजर्ट नहीं खा सकते हैं, मैं भी खुद खाती हूँ, बट चूज योर डेट्स. जैसे कि हम भूल जाते हैं हमारी परंपरा क्या है. हमारी परंपराओं में जो मीठा और फ्राइड फूड होता था वो केवल सर्व होता था उन स्पेशल ओकेजन. लाइक आप देख लो, दिवाली में मिठाई और पकवान बनते थे, बर्थडे में आप केक काटते हो, खुद नहीं खाते हो, किसी और को खिलाते हो और वो बंदा आपको खिलाता है. मंदिर में हमको प्रसाद में थोड़े रूप में ही मीठा मिलता है, बट आजकल जो डिजर्ट खाने की जो फैशन बढ़ गई है, हर जगह वो मिलता है और डेली खाते हैं काफी लोग. चॉकलेट्स हर जगह अवेलेबल होती हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग. अगर आपको इफ यू आर वेरी हाईली पॉसिबल आपको कैंसर हो, तो इसके लिए अगर आप
चाहो तो डिजर्ट इज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओकेजन्स ओनली, मीठा, बिकॉज वो कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट्स भी ज्यादा होता है जो कि आपके चांसेस को बढ़ा देता है कैंसर होने के. सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कैंसर. सो हम इसके अलावा जिसको अगर जो कैंसर हो जाता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हम लोग उनको बताते हैं, या कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वी मेक अ स्पेसिफिक डाइट. वी हैव so many clients who are on the cancer diet and we touch wood they all doing well in prevention of cancer. ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फैंसी फूड जो कि आप खाने से कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो. इट्स अ होल 360-degree way of your life, which is sleep and exercise, controlling desserts, controlling carbohydrate intake, and having less of high carb food like potatoes and fried, and sleeping enough and having proteins in your diet is what actually prevents cancer. और उनके हम डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उनको आर्टिफिशियल रूप में भी हम प्रोटीन पाउडर देते हैं जिससे कि उनकी बॉडी में फाइट करने की क्षमता बढ़ जाए. एंड सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर ऑल द people who come to us for cancer. So Simran, is there any other question which is there, or if you would like to know from me? बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें बताया कि प्रोटीन हमें ऐड तो करना ही चाहिए. मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे जो और हमारे साथ शगुन गुप्ता जी भी हैं, कि इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक जो आप बताना चाहेंगी? आपने तो ऑलरेडी बताए हैं ओवरऑल की प्रोटीन की इतनी इसेंशियल बात है. स्पेशली फॉर ग्रोइंग गर्ल्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज़ coming down, or even the girls are really becoming matured very fast. तो उनके लिए कुछ diet so that towards looking at towards cancer, कि जो growing up girls है, even the school girls जो बहुत interest रखती हैं in junk food, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? How can we tell them? जैसे आपने कहा dates, jaggery, दिवाली, क्योंकि हमें लगता है कि रोज हमें दिवाली मनानी चाहिए, life is beautiful. तो उसके बारे में please थोड़ा सा for young girls, because we are live on Facebook. Oh yeah. So for all the young girls who are live on Facebook, मेरा ये कहना है कि मैंने देखा है there is a huge trend कि जो गर्ल्स यंग जनरेशन है वो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम. वो स्लीप को ध्यान नहीं देते. एक्सरसाइज एवरी डे, स्लीप वेरी वेल, एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट ईट जंक. जंक को भी हम, इसलिए मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अनजंक. उसमें हम लोग ने जो भी जंक फूड है, वेदर इट्स पिज्जा और पास्ता और सेव पूरी और पानी पूरी और भेल पूरी, उसको हमने सबने प्रोटीन डाल के बैलेंस किया है. व्हाट इज जंक? जंक फूड इज वेर इज अवॉइडेंस, जिसमें कि न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें प्रोटीन नहीं होता, मिनरल्स नहीं होते, और इट्स ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. सो हम लोग ने तो अगर आप जंक फूड पसंद करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन बैलेंस, लाइक से इफ यू आर ईटिंग अ बर्गर, सो अगर आप घर पे बर्गर बना रहे हो और चिकन नहीं खाते हो तो आप उस बर्गर की पैटी में उसको फ्राई करने की जगह आप उसको टोस्ट कर लो, रोस्ट कर लो, एंड उसमें आप पनीर डाल दो या टोफू डाल दो, तो इट बिकम्स बैलेंस. इसी तरह से अगर आप लेते हो पाव भाजी, पाव भाजी इज अ वेरी फेवर्ड जंक फूड बाय मुंबईकर्स. तो हम लोग ने क्या किया, पाव भाजी भी हम लोग ने अनजंक किया. मैंने कहा आप पाव भाजी खाओ, कोई प्रॉब्लम, मेरे घर में वंस अ वीक बनता है. हम लोग में उसने थोड़ा सा मूंग डाल दिया, एंड उसको अगर आप पाव भाजी को दही के साथ में लेते हो तो इट बिकम्स अ परफेक्टली बैलेंस्ड मील. सो इट्स नॉट दैट यू कांट ईट, बट ऑफ कोर्स शुगर कंजम्पशन पे कंट्रोल रखें. एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ऑल द डॉक्टर्स सेड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. Metabolic disorder is a disease which a lot of urban people suffer from. So because of less mobility and because of the family history of ailments, so metabolic disorder means that a person who's more जिनको की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तीनों होने की शिकायत, या इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ प्री डायबिटिक कंडीशन जो कि बहुत जल्दी से पकड़ में नहीं आता. और मैंने ये भी देखा है कि जो कैंसर जिनको होता है, आई एम श्योर डॉक्टर्स विल अग्री विद मी, कि आप देखते हो कि डायबिटिक्स आर मोर, इफ दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर शुगर, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग डायबिटीज. सो डायबिटीज को बहुत जरूरी है कि वो अपना शुगर कंट्रोल करे, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ओबेसिटी को कंट्रोल करे, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी बिग पार्ट फॉर देम टू गेट cancer in later stage. So insulin resistance is a condition which people do not understand. Very high insulin levels also makes them susceptible to getting cancer. So, thank you. Yeah. Thank you सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे भी सब लोग खुश होंगे क्योंकि मैक्सिमम
लोगों की फास्टिंग चल रही है, तो एनीवेज दे विल नॉट इंडल्ज, तो काफी खुश हो रहे होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस the beautiful insight about being healthy from within, and of course taking charge over your life by change in lifestyle. हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं of our former first vice district governor Mr. Deepak Chaudhary जी, जो हमारे साथ यहाँ आए हैं, हमसे जुड़े हैं. सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर that Lions Club of Bharat Icon, or several Lions Club, has taken this initiative of spreading cancer awareness, breast cancer awareness month, which is October. So sir, please may I kindly request you to kindly address everyone on this wondrous feeling of bringing awareness amongst the masses, please sir. Mr. Deepak Chaudhary, please sir. जी, दीपक चौधरी जी हैं हमारे साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. मे बी जब भी आप आ जाएंगे तो we'll request you to speak a few words. दोस्तों, हमारे साथ आज हैं इंडियन फैशन और ब्यूटी वर्ल्ड की ग्लोबल आइकॉन, जिन्होंने अपना मार्क तो बनाया है न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सेवरल ओकेजन्स पर as India को represent करती हैं as a diplomat. We are truly happy and excited to welcome the very renowned and the great personality, that's Dr. Shagun Gupta. शगुन, तहे दिल से आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. और शगुन, हमारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं. आजकल हम सब राइट फ्रॉम मेकअप, कॉस्मेटिक्स से लेकर कॉस्मेटिक सर्जरीज में बिलीव करते हैं. तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे ऑफ कोर्स अबाउट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग टैटू करवाते हैं वहां पर, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडी जो आया था वेस्ट से ट्रेंड, इसके बारे में भी आप हमें जरूर इसके बारे में बताइए. शुक्रिया. May we please welcome the very lovely Shagun Gupta. Yes, good evening everyone, and first of all I want to thank Simran ji and Mr. Akhil Bansal, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म यहाँ हमें दिया है और हम आज इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, खाने की बात चल रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात चल रही है, और हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं हमारे इस ब्रेस्ट कैंसर मंथ में जो हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, वो आज इतनी जगहों से मिलकर सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी ऑल दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव विद मी आफ्टर द कैंसर पेशेंट. जब हमारे पास कैंसर पेशेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम विमेन हमारे पास आती हैं जो कि काफी उदास रहती हैं और कहती हैं कि हमारे पास अभी कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है. एक आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया है कि रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद भी एक थोड़ी सी कमी महसूस रहती है कि वो जब भी कपड़े खोलती हैं तो खोलने के बाद उन्हें एक रियलाइजेशन होता है कि कुछ फिर भी मिसिंग है. इतना सब कुछ होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, कीमोथेरेपी कर लिया, इतना सब हमने किया, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी हमारे को महसूस हो रही है. तो एक जो परमानेंट, आई एम लाइक परमानेंट एंड पैरामेडिकल माइक्रोपिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट, जैसे कि स्कार्स, आप जैसे कि सर्जरी होती है तो स्कार के निशान वहां पे रह जाते हैं, और निपल्स और एरियोला में कलर जो है वो नहीं रहता है, और उनको एक फीलिंग्स जो है कि ये कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरापन है, तो हम उस अधूरेपन को पूरा करते हैं. तो जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनको बोलते हैं कि इसकी भी जो कमी, लास्ट में आप एक सर्वाइवर हो, आपने अपनी जिंदगी में मतलब एक विमेन शक्ति जो सब कुछ सहन करती है, और सहन करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद उनको फिर ये एक दोबारा से नई जिंदगी और इमोशंस के साथ जीने के लिए मिलती है. तो हम उनको बताते हैं कि उसके लिए भी, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमारे पास आपके लिए काफी कुछ पड़ा है. क्योंकि क्या होता है कि जब कीमोथेरेपी होती है तो काफी इमोशनल, फिजिकल एंड काफी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, आईब्रोज आपके काफी कम हो जाते हैं, काफी मात्रा में कम दिखते हैं, और आपके फ्रंट लाइन, हेयर लाइन जो होती है, फ्रंट हेयर जो है वो काफी मात्रा में निकल जाते हैं, और लैशेस काफी फॉल हो जाती हैं.
तो इन सब का जो एक ब्यूटिफिकेशन से उन्हें लगता है कि हम बाहर कैसे जाए, अंदर की चीज तो छुपा लेते हैं पर बाहर उनको अच्छा और सुंदर दिखना है। तो यहाँ पे पैरामेडिकल और कॉस्मेटिक माइक्रोपिगमेंटेशन जो है वो बहुत मायना रखती है। और हम बहुत से कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं और बहुत हैप्पीली वो अपने आप को दुनिया के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे कि आईब्रोज, हम आईब्रो जो नेचुरल आईब्रो है माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू उनको हम शेप देते हैं और बिल्कुल एकदम नेचुरल आईब्रोज उनके डेवलप करके देते हैं और हेयर लाइंस बना के देते हैं। वो इतना कैमोफ्लेज हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि रियल में आपके रियल में ही आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर है आपके पास। और आई लैशेस के लिए हमारे पास लैश एनहेंसमेंट रहती है, जो उनको हम लैशेस को एनहेंस कर देते हैं। और ब्रेस्ट के लिए हम एरियोला बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो हम किस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से जब सिलिकॉन रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जब ये एरियोला इसे कहा जाता है, साइड का जो एरिया है, रफ एरिया है, तो ये बिल्कुल एकदम कलरलेस रहता है। तो उसमें वो फीलिंग्स नहीं आती है। जब आप कपड़े खोलते हो तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो वो सैडनेस उनके फेसेस में रहती है। तो ये जो हम एरियोला बनाते हैं और जो निपल है उसके ऊपर हम 3D एरियोला शेप देते हैं और उसको एक 3D लुक देकर ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में ही निपल है। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या कहते हैं 3D एरियोला फॉर्म करते हैं और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर किया है और बहुत एक्चुअली बहुत बहुत हैप्पी हैं और काफी दुआएं देके जाते हैं हमें। तो इस तरह से परमानेंट मेकअप और ये पैरामेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन जो है वो हमारे इंडिया में भी अभी अवेलेबल है। नहीं तो खाली जो लोग काफी वेल्दी हैं वही बाहर जा सकते हैं, इंटरनेशनली ट्रेवल कर सकते हैं और अच्छे स्पेशलिस्ट से जो है ये सब टेक्निक्स जो है वहां करके आते हैं। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास ये सब ऑप्शंस नहीं मिल पाती। तो आज हमारे इंडिया में ये सब चीजें अवेलेबल है और हम उनको ब्यूटिफिकेशन देते हैं। उनके स्कार्स जो आ जाते हैं सर्जरी से, उनको हम हाइड करते हैं। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका और थोड़ा पेनफुल है, बहुत हल्का मामूली सा पेन आता है, बट हम उसमें एक एनेस्थेटिक क्रीम लगाकर हम उनको ये फॉर्मेशन करके देते हैं। So they finally feel very very happy and they love the treatment और they enjoy the life। जो स्ट्रेस रहता है, क्योंकि विमेन का क्या है कि उनके अंदर एक नारी शक्ति है और हमेशा से वो हमारी जननी है, मतलब माना जाता है कि मतलब उनके उसके विमेन के अंदर एक पावर है। तो जहां से मतलब इमोशनल इम्बैलेंस शुरू होता है, फिर वो अपने आप को बैलेंस करती है और फिर अपने आप को खड़ा करती है और इस तरीके से वो हर चीज को बैलेंस कर लेती है और नई दुनिया की शुरुआत करती है और नई दुनिया को। और इसी तरीके से हम लोग एज एन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हम पे काफी काम करते हैं और काम करने के बाद फिर हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड है, सुमन अग्रवाल जी ने काफी हमें बताया है कि ये खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए और अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। इस तरीके से फिर कॉस्मेटिक टैटूइंग आती है, ब्यूटिफिकेशंस आती है कि आप अपने आप को कैसे खूबसूरत रख सकते हो और अपने दुनिया को दोबारा से जिंदा रख सकते हो। सो आज अक्टूबर महीना है और ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में हमारे यहाँ पे भारत आइकॉन फैमिली जो है सब लोगों को इकट्ठा किया है और इतने टॉप डॉक्टर्स को यहाँ पे अवेयरनेस के लिए लाया गया है। तो सबका मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इस पैरामेडिकल और माइक्रो पिगमेंटेशन ब्यूटिफिकेशंस के लिए आज यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। तो आई होप कि ये चीज सब लोग सुन रहे हैं, मीडिया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब जगह पे ये स्टोरी हम डालते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस मिल चुकी है और आज हमारा इंडिया पीछे नहीं है और हर चीज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू अखिल बंसल जी एंड ऑल भारत आइकॉन फैमिली जिन्होंने ये सब अवेयरनेस के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा किया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड सिमरन जी कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी, आई विल आंसर। सबसे पहले तो शगुन जी मैं कहना चाहूंगी, आपने वो जो नारी शक्ति की बात की तो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, मोमेंट है
और फिर आपने वो कंप्लीट वुमन को कंप्लीट किस तरह से किया जाए वो बताया। आप हिंदी इतनी खूबसूरती से बोलती हैं, मुझे पता नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया शगुन गुप्ता जी। और डेफिनेटली आपको जो भी सवाल हैं आप यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हैं फेसबुक पर, और डेफिनेटली हम शगुन गुप्ता तक पहुंचाएंगे। हमारे जो एस्टीम डॉक्टर्स हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम इन तक जरूर पहुंचाएंगे और आपको इनके जवाब मिलेंगे। थैंक यू। बस सिमरन जी एक बात और कहना चाहूंगी कि आई एम मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्पेशलिस्ट, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जस्ट टू correct myself here. So thank you so much. Aesthetic world की महारानी है, she's the princess of the aesthetic world. May we please thank Shagun Gupta ji and humbly welcome our former first vice district governor, Mr. Deepak Chaudhary ji, who's joined us. Can we please kindly request you, sir, at first allow me to thank you and Lions Club of Bharat Icon for this wondrous initiative of truly spreading awareness regards breast cancer. Thank you so much, and I'm going to request you to kindly address everyone here on this wondrous occasion. I call it wondrous occasion because बहुत जरूरी है, हम सब इतना कुछ सीख रहे हैं, and let us all believe in prevention is better than cure. Thank you, Simran ji. First of all, I would like to congratulate Akhil Bansal ji and the Bharat Icon for taking this initiative and making the Lions aware about the various symptoms about the breast cancer and what the remedies you have taken. I would say एक परिपूर्ण ऐसा सेमिनार इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि यहाँ आपने हर फैकल्टी और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स you have invited. I have been hearing and I must say that right from the what are the symptoms और उसमें क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसके साथ में अपने डाइटिशियंस, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सो वंडरफुल सेमिनार। मेरा यही कहना है कि कंपैरेटिवली द अटेंडेंस इज मोर, सो मैंने रिक्वेस्ट किया कि इफ दिस कैन बी रिकॉर्डेड वर्जन, if you circulate to our 8,000 Lion members, it will be very useful and it will be very basically the kind of, it is said, जैसे हमारे डॉक्टर मुदस्सर ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, और काफी एक्सपर्ट ने कहा कि कैंसर में यही होता है कि अर्ली डिटेक्शन एंड द एक्शंस व्हाट यू टेक दैट विल हेल्प अ लॉट ऑल ओवर द इंडिया। जो कैंसर का मीनेस बढ़ रहा है, तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव बाय द लायंस विल डेफिनेटली मेक अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, और हम ज्यादा से ज्यादा इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए बढ़िया। I also will, Simran, the way you have been coordinating, it was excellent and it's very informative seminar, I would say, and I think the maximum Lion members should take a benefit of this. Once again, congratulations to you all and thanks to all the expert faculty who have really guided us. They have given the basically very excellent guidance that how to prevent it, and in case it happens, then how you can tackle with the cancer menace. Thank you very much. Thank you so much for your kind words, respected Deepak Chaudhary sir, and thank you for joining us. And sir, बिल्कुल ठीक तरीके से हमारी जो भी family जुड़ी है of Lions Club, we are truly honored and humbled. Once again, we like to thank our Honorable District Governor, Lion Shashikant Mode sir, our Honorable Vice District Governor, Lion Dr. Khwaja Mudassir sir, and our Honorable Vice District Governor, Lion Hemant Raj Sethia sir. Thank you very much, Dr. Deepak Chaudhary ji. Thank you. And now moving ahead, well, ladies and gentlemen, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर राखी अग्रवाल जी, जो MS सर्जरी क्वालिफाइड हैं, FAIS FICS हैं और एक कंसल्टेंट है, एक जनरल सर्जन है, और हमें बहुत सारी आज जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर राखी अग्रवाल जी। तहे दिल से आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राखी जी, और आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है। जी जी, थैंक यू सो मच। I am really grateful to the Bharat Icon Club, and listening to all the speakers, it was really highlighting, and especially at the end, that aesthetic part and the dietary part, and the way Deepak ji has conveyed his message that he's really truly he wants to join doctors. So my theme for today is Mission Pink Health. But before that, Simran ji, if you could please play the video of cancer awareness, which we had created some months back. Sure, we'll share the screen right now. Sure, meanwhile, thank you. Meanwhile, I'd like to mention Deepak sir, you did mention अगर ये recorded version हो, बिल्कुल हमारे पास इसके record भी हैं, we'll certainly send it to you as well, sir. We are live as well and it's been recorded, so we'll certainly send it to you and spread awareness as much as possible in this October month.
Thank you. Just give us a sec. Would you like to go ahead, Rakhi ji? We're just planning to get this done and the presentation. I'll do the readful, ma'am. Sure. I'll try to do the readful. Yeah, just share the screen. Yes, your green yes, button. ma'am. That's it. Thank you, sweetheart. Simran, I'm unable to share. Sure. Sweetheart, that's fine. Ma'am is trying. Okay. Thank you, Namu. Beautiful. Beautiful, beautiful. Thank you, Rakhi ma'am. हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. Yes, ma'am. Sound नहीं हो रहा है, ma'am. Sound? Sound नहीं आ रहा है. Ma'am, I'm trying. Just a sec. Sure, sure. ये हो गया, sound भी हो जाएगा, राखी मैम. I'll play without audio. The meaning is crystal clear. जी जरूर. Forward कर. Audio is not there, I believe. राखी मैम आप म्यूट पर हैं. You want to be on unmute and talk simultaneously? I think she is unmute. That's the reason we are not able to hear the. No. I thought maybe she's talking, but maybe she's talking to the kid who's there. So it's okay. She's aware there is no sound. If the young kid can help you, yeah. Oh, lovely girl is here. Just give us sound. Sound के लिए. वॉल्यूम पे कर सकते हैं. Is it okay if we can unmute yourself so that we can hear? No, they're talking amongst themselves. Namrata, they're talking amongst themselves. That's why they're trying to do it. I'm going to request Rakhi ji, if you just want to go ahead with your presentation, is fine with us, if it's possible. आप mute पर हैं राखी जी. I'm going to request you, अगर आपको ठीक लगे, if we can kindly go ahead. Muted by the host, तो मैं क्या करूँ? मैं जरूर हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर्स जुड़े हैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी that one golden rule अगर आप हमें बताएं. Yes, राखी जी, आप बात करना चाहेंगे राखी जी? Yes, I'll go on with my MPH this thing PPT. Sure. Then we will go ahead with this. ठीक है जी. बोलना आपको अनम्यूट करे बाबा. Please unmute me. एक सेकंड. Unmute me. अनम्यूट पर है मैम. आप अनम्यूट पर ही हैं मैम. आपके स्क्रीन शेयर का आवाज नहीं आ रहा है मैम. आप अनम्यूट पर हैं. हमें आपकी आवाज आ रही है मैम. We can hear you very well. पूछो अभी now. Can you hear me? Can you hear me now? Very well. We could hear you earlier also. Can you hear me? Yes, I can hear. Yeah, ma'am, you are on unmute. आपका स्क्रीन का जो स्पेस का ऑडियो नहीं आ रहा है. So I'm very sorry for the technical errors. So let's start. Our nature is pink. Birds and animals are pink. Fruits and vegetables we eat are also pink.
Even body parts like lips, tongue, nails, body color is somewhat pink. Jaipur city, capital of Rajasthan, is pink. Even one Bollywood movie is pink. So a pink ribbon symbolizes breast cancer awareness, the topic of today's discussion, beautifully explained by all speakers of today. So my regards to all the dignitaries of Bharat Icon. I'm a member of Indian Medical Association. The members are doctors who are MBBS and above. Besides taking care of health of community at large, IME is also committed to social cause. Mission Pink Health is a national health project for adolescents. So adolescents here I address to kids who are 10 to 19 years. So I'm a core member of Mission Pink Health by IMA headquarters. So Mission Pink Health deals with, it's a flagship community health project for adolescent girls and boys. It's a national health initiative of IMA for adolescent health, Anemia Free India, Welcome the Girl Child, Aao Gaon Chale and Aao School Chale. So adolescence is a very beautiful phase of life. It needs tender loving and care. Our vision for Mission Pink Health is Healthy Nation Today and Tomorrow. Our mission is Anemia Free India and adolescent health. Our target for this year's 2021 is minimum 1 lakh girls and boys health awareness. Aims is to impart health education to all girls and boys of school going age all across nation and hence create a healthy society. Adolescents I address to 10 to 19 years. Age suitable lectures can be arranged on above topics. Our team consists of pediatrician, gynecologists, psychiatrists, pathologists, dietitian and counselors, etc. So the lectures will be on pediatric, obstetrics, psychiatry, diet, exercise, general career counseling, and for today's time, COVID awareness too. So these are the topics. Anemia, prevention and control. For a healthy girl will only produce a healthy child. Alcohol and other drug abuse. Breast and cervical cancer. So very true to Simran ma'am, we are taken up this very beautiful lecture on breast cancer. So we can take similar lectures in future too. Early pregnancy and child health. Welcome the Girl Child. This is also initiative taken by Government of India. COVID myths, facts and management. Career counseling. Good touch, bad touch, which is very important for very young young children below adolescence also. Importance of hand wash and personal hygiene. What more than today's scenario will tell us that personal hygiene and hand wash is very, very important. Role of healthy diet and nutritional deficiency diseases. Obesity, associated lifestyle health issues. Role of exercise. Rights and responsibilities of adolescents. Mental health problems, including depression and suicide. And I'm very grateful to say that first video lecture on mental health has been done by me and introduced by Mission Pink Health Team of India. Emotional health, menstrual hygiene, social media addiction, sexual and reproductive health, knowledge on vector and waterborne diseases. For present COVID times, for the safety of children, we will choose e-platform to create awareness as of now, and also we'll provide informative videos, posters, etc. from time to time. A medical health checkup, a general, dental, ophthalmic can be taken up after the COVID times. Now, how you can be a part of MPH? You are very well connected in society. You all are welcome to extend your support to this mission and make it our mission in creating health awareness. For this collaboration, in person or an NGO is allowed. Men, women, medico, non-medico can join in this mission. Contact your known school organizations at town and village level and let us know. We can arrange a Zoom meeting with the principals, teachers. Social media awareness can be done as of now. So together we can make a difference. Thank you. So at the end, I just like to say, जब I को V से बदल दिया जाता है, जब I को V से बदल दिया जाता है, तो illness भी wellness में बदल जाती है. That's it. Thank you, Simran ji. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच राखी जी. एंड जो आपने पिंक का महत्व हमें बताया है, आपने हमें पूरी दुनिया घुमाई और प्रेजेंटेशन में ऑडियो नहीं था लेकिन वो विजुअल से हम इतनी खूबसूरती से सब कुछ समझ गए जितना हम पिकअप कर सकें. एटलीस्ट बॉलीवुड स्टार्स तो हमने काफी सारे देखे, बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस कनेक्ट विद देम एंड एक्चुअली letting us connect with cancer and creating awareness regards breast cancer. Thank you very much. Anyway, this video is on the YouTube. I will pass it on. I'll be thankful for to Deepak ji and Akhil ji if could be circulated. And we have Mission Pink Health
YouTube channel where a lot of awareness videos have been created, and I may at this platform I may wants all the individual in India to connect to us, to doctors, so that we can create a healthy tomorrow. बहुत शुक्रिया राखी अग्रवाल जी, thank you so much. I'm going to take this opportunity of truly thanking the truly wondrous Lions Club of Bharat Icon for really bringing this wondrous platform, all of us together, so that we could spread awareness, being together. Once again, I'm going to request you, Rakhi ji, if you can just not share the screen space, and perfect. Thank you. That's good. Thank you so much. And thank you very much to each and every one of you. At first, we were truly humbled to have with us our Honorable District Governor Line Shashikant Mode, Honorable Vice District Governor Line Dr. Khwaja Mudassir, Honorable Vice District Governor Line Hemant Raj Sethia, and Honorable First former Vice District Governor Mr. Deepak Chaudhary ji. I'm going to take this wondrous initiative of personally thanking all of you, and right from sharing the expertise was Dr. Ritesh Agarwal ji. Thank you so much, sir. Dr. Sanjay Sharma ji, Padma Shri. Dr. Ashok Gupta sir, thank you so much. Dr. Raj Nagarkar ji, बहुत shukriya. Suman Agarwal ji, thank you so much. Shagan Gupta ji, absolutely wonderful having you. And Dr. Rakhi Agarwal ji, may we please take this initiative of spreading this further by sharing it. It's live on our YouTube page of Bharat Icon. And now the man who had a vision to really create a happy world, may we please welcome the founder of Bharat Icon and the president of the Lions Club of Bharat Icon, the very respected Mr. Akhil Bansal ji, the founder and chairman of Royal Heritage Group. A wholehearty welcome to you, dear sir. Great work done by you and your organization, and we truly congratulate you. Thank you. It's an absolute honor for all of us to be on this one platform to spread awareness regards breast cancer. May we please request you, Akhil Bansal sir, to kindly thank everyone on this very wondrous occasion. दो शब्द आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर. शुक्रिया के दो शब्द अगर आप सभी से कह सके तो. बहुत शुक्रिया. I'm also going to take this opportunity of thanking my dear friend Namrata Nahar and Khushbu Revatkar for really coordinating. और दोनों लड़कियां हैं और हम नवरात्रि से गुजर रहे हैं हमारे साथ. आप सभी जुड़े हैं. Thank you sir. Over to you dear sir. एक नवरात्रि का स्मॉल सॉन्ग तो होना चाहिए. अच्छा सर, गरबा नाचे सर, ठीक है. हाँ, 2 सेकंड के लिए. जरूर सर, जरूर हो जाए सर. ग्रेट फीलिंग सर. नम्रता जी. अपना वीडियो अपना अखिल बंसल सर, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो कोई इशू नहीं, मैं देख रहा हूँ. नहीं, आपको तो सब देखना चाह रहे हैं ना. अच्छा. तो बहुत ही क्यूट बेबी है, बहुत अडोरेबल बेबी है. क्या बात है. हाँ सर, आ गए बिल्कुल. हेलो सर, आपका बहुत स्वागत है तहे दिल से सर. शुक्रिया सर. आप लाइव हैं अखिल बंसल सर. हाँ जी. हाँ जी सर, आप लाइव हैं. बिल्कुल लाइव है. शुक्रिया के 2 शब्द कहना चाहेंगे सभी को सर. मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि वी आर ऑल थैंकफुल टू ऑल आवर Lions governors and our dignities, and also thank to you to well connect. All right. बहुत शुक्रिया सर. जैसे कि हम सब जानते हैं that sir is a man of action, absolutely a man of few words, but a man of super action. तो बहुत शुक्रिया. I'm going to take this opportunity once again to hold in hand, thanking all of you and wishing you all. एक सॉन्ग होना चाहिए आपका नवरात्रि का 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड का. जी. नम्रता जी, अगर आप कनेक्ट कर सकें नवरात्रि का सॉन्ग, और या तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स हैं, और मैंने सुना है डॉक्टर्स ज्यादातर सिंगर्स भी होते हैं, तो अगर 2 मिनट के लिए हम ब्यूटीफुली कुछ गा सकते हैं और हम आपके साथ गरबा रमेंगे तो पॉसिबल है तो डेफिनेटली. एंड तब तक नम्रता जी एंड खुशबू जी ट्राई कर रहे हैं सर ऑफ प्लेइंग अ सॉन्ग. एंड मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम लाइव है फेसबुक पर मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगी कि हम सब चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में, और मिस्टर अखिल बंसल सर के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर
लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन पे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां हमें चैलेंजेस स्पर ऑफ द मोमेंट पे आते हैं और ये चैलेंजेस को फेस करते करते हम बहुत स्ट्रांग होते हैं. सो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन for this wondrous initiative and of course for allowing us to really face challenges, be positive and go ahead and win the world. I'm also going to take this opportunity of wishing all of you on behalf of Lions Club of Bharat Icon a very happy Dasera, a very happy Sharad Purnima and a very happy Diwali. We always say life is a celebration, but जैसे कि सुमन जी ने कहा कि हमेशा डेजर्ट्स नहीं खाने चाहिए. तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, तो हम थॉट्स के साथ उसे पॉजिटिव थॉट्स में डालें और जितना हो सके हेल्दी फूड्स में रहें. और जैसे कि हमारे एस्टीम डॉक्टर्स ने, डॉक्टर रितेश सर ने, डॉक्टर संजय शर्मा सर ने, पद्मश्री डॉक्टर अशोक गुप्ता ने, डॉक्टर राज नागरकर सर और डॉक्टर राखी अग्रवाल जी ने हमें कहा, एंड ऑफ कोर्स शगुन गुप्ता जी ने जो एस्थेटिक अपील यूज किया. अगर हम अपने हेल्थ का ख्याल रख सकें, वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बी हेल्दी, safe, and please share this as much as possible and be connected with us. We are completely like a family here, Lions Club of Bharat Icon. And thank you very much to each and every one of you for your valuable time. मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहटें कम दिख रही हैं, शायद हमने गरबा गाना नहीं चलाया, लेकिन चाहूंगी कि बस देवी का सीजन जो है हम पर देवी की दया है, देवी की सच में बहुत बहुत ग्रेस है हम सब पर. तो मैं चाहूंगी एक ब्यूटीफुल मुस्कुराहट से हम सब एक फोटो ऑप में आ जाएं. और नमो अगर हम एक सब फोटो ऑप साथ में कर सकें would be great. I'm going to request all of you to have your videos on and let the audios be on mute. अगर हमारे अगर videos on हैं तो we would like to have a group photo op. Thank you very much to everyone who's been here with us. बहुत बहुत शुक्रिया. नमन जी, वो बेबी का पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है. और आपकी मुस्कुराहट के बारे में क्या कहूँगा जी. थैंक यू सिमरन. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. शुभ नवरात्रि. अच्छा, वन सजेशन और देयर. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर. अच्छा, अभी ये कैंसर अवेयरनेस का अपना इतना अच्छा टॉपिक अखिल जी ने लिया. अगर ये अखिल जी सुन रहे हैं क्या आप? अपना एक दिवाली का आपने बोला था, एक आपने को कुछ अच्छा, एक ऐसे ही अभी सजेशन आया ये प्रोग्राम देखते अपना ये अपना कैंसर का एक अपना एक इधर टाइन में एक ये सेंटर है जहाँ पे बहुत गरीब लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने हैं. तो उनको अपन ये दिवाली के माध्यम में जो अपन गिफ्ट देने वाले थे कुछ एक प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम अपन कर सकते हैं क्या, जो कैंसर पेशेंट को कुछ खाना या कुछ गिफ्ट वगैरह दिवाली का अपन? नहीं, डेफिनेटली हम लोग इस पे पर्सनल अपने चलिए ठीक है, मैं आपसे पर्सनली फिर बात करता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. कहना चाहूंगी कि हम अगर लाइव स्ट्रीम बंद कर सकें तो हम सब बात कर सकते हैं आपस में. बट thank you very much to everyone on Facebook and YouTube who's joined us here. Thank you very much on behalf of Lions Club of Bharat Icon. Jai Hind, Namaste. Can we have the live stream off? We are still live. Namaste. Can we have the live stream off, please? Live off. Yeah. Our recording is off. Live को भी end कर दीजिए.